Good afternoon, guys. In this session, we will be briefly discussing about what is margin trading facility, MTF trading, and how to use that in to basically create positions in futures and options and basically create hedge positions. And we will also briefly discuss about three basic strategies of futures and options and the risks and rewards associated with the strategies. So margin trading facility is nothing but getting margins for your share. Simple. For you, if you have to trade in a trade for any script, you basically what you do is you deposit cash in the demat account. So that cash is basically treated as margin for trading. So similarly, instead of cash, your broker, there are few brokers like ICICI and IIFL mainly. ICICI I prefer most of the times, even though it has a little higher brokerage charges, but for margin trading facility, it has basically zero brokerage in futures. This is the only only brokerage firm which offers zero brokerage in futures. Even Zerodha and Upstocks, they offer 20 rupees per order and on low. So secondly, there is no interest for margin trading in futures. Basically, if you take shares, if you basically pledge your shares with your broker, your shares or your FD or any type of assets with your broker basically gives you some margin for trading. If you deposit cash, then the broker gives you entire margin. If you deposit stocks or any other thing, then the broker will give you something lesser than that. But in the end, broker will give you margin. So here you are earning passive income for all these securities that you have pledged to the shares. Obviously, if these securities are growing, you haven't sold it to the broker. So simply, you are these assets by this you are getting passive income, and since a broker has given you margin, you can use that margin to do active trading. You can actually use that margin to buy stocks as holding, but yes, there will be some interest that will be charged around 9, 10, 11% depending on your brokerage plan and everything. And if you are doing in futures and options, it is basically absolutely free. There is no charge for futures and options margin trading. So if anybody has any doubt regarding what is margin trading till now, what is margin trading, then you can simply ping on the chat, because this is nothing but a small definition. That's all about margin trading. I'll simply explain few futures and options trading strategies using those margins. If those strategies are like sound good enough to you, you can definitely ask me what is the process for all these things, process for pledging shares and other things after the webinar. But like brief definition wise, बस इतना ही था. आपको सिर्फ यही जानना है कि यू कैन डिपॉजिट योर शेयर्स, एफडी, गोल्ड, कोई भी चीज आप डिपॉजिट कर सकते हो एंड उसके बेसिस पे मार्जिन मिलती है एंड शेयर्स आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो. Now if you don't know what are futures and options, what are derivatives and these things, तो I will briefly explain ki hota kya hai futures and options, and then I'll briefly explain a few strategies. But the thing is, if you are not aware of futures and options, basically ये webinar, it is not exactly for beginners. इस webinar में there are a few things where basically it is ये वेबिनार इज नॉट इन जनरल. मतलब इस वेबिनार का एम इज दैट आई विल शो कि हाउ मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस positions which all the recommendations which I give, how to interpret those, how to read those, and how to trade on those, what are the risk rewards associated with all those things. So you basically don't need to know exactly about what is happening in the background. It is basically कि if I am giving you any recommendation future FNO से hedging का, तो होता क्या है बेसिकली, उसका मतलब क्या है एंड क्या कैसे प्रॉफिट कमाया जा सकता है, वो द रिसर्च एंड ऑल दोस थिंग्स, वो बैकएंड में क्या चीज चल रहा है, दैट इज माय और योर एडवाइजर्स लुक आउट. assuming that you have an advice how to trade, that is also like this session is basically devised only for that. So you won't learn exactly कि futures option क्या होता है, strategy कैसे बनाते हैं, वो इतने डिटेल में I won't go. So let us start with सिंपल मैं कुछ स्ट्रैटेजीज बताता हूँ. बट बिफोर दैट, मतलब एक बार हमें बेसिक्स में देखना होगा कि व्हाट आर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. तो मैं आपको एक सिंपल, लेट मी गिव यू शो यू अ सिंपल स्लाइड, जस्ट अ सेकंड.
सो देयर बेसिकली उससे आपको एक सिंपल समझ में आ जाएगा कि व्हाट आर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. जस्ट अ सेकंड गाइस. Actually, since someone of you asked specifically about futures and options, तो मैं basically मेरा ऐसा कोई I didn't plan to include futures and options in this webinar. मैं आपको basic बता देता हूँ कि क्या होता है futures एक basic example के साथ. uh, it is very detailed. How है? So let 1 second. सो बेसिकली लेट्स सपोज मैं आपको बताता हूँ कोई सिंपल सा एग्जांपल. लेट्स सपोज कोई शेयर है. लेट्स सपोज आईटीसी का शेयर है और आपको लगता है कि आईटीसी का शेयर का प्राइस ऊपर या नीचे कहीं कुछ जाने वाला है. लेट्स सपोज. ठीक है. लेट्स सपोज कोई भी शेयर है, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं व्हाट आर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. तो उसके लिए उसमें वी आर डिस्कसिंग. ठीक है. तो लेट्स सपोज हमारे पास कोई शेयर है, आईटीसी का शेयर है. ठीक है. आईटीसी का शेयर का प्राइस लेट सपोज अभी 210 के आसपास है, कुछ इसी के आसपास होगा. समवेयर अराउंड दस. आई डेंट चेक द प्राइस. जो भी है लेट सपोज 210 के आसपास प्राइस है. आपको लगता है कि आईटीसी का शेयर का प्राइस ऊपर जाने वाला है. ठीक है. लेट सपोज आपको लगता है आईटीसी का शेयर का प्राइस ऊपर जाने वाला है, या फिर किसी रीजन से यू हैव टू बाई आईटीसी शेयर्स. एंड आपको लेट्स जो भी किसी भी रीजन से यू वांट टू बाई आईटीसी शेयर्स. ठीक है. यू वांट टू बाई आईटीसी. बट आपको ये डर लग रहा है कि कहीं आईटीसी का शेयर का प्राइस ऊपर ना चले जाए. कहीं ऐसा ना हो जाए कि आईटीसी का शेयर का प्राइस ऊपर चला गया. अगर इन केस तो ऐसा हो सकता है कि 230 240 पे मिले आपको. लेट सपोज ये सिनारियो है दैट यू वांट टू बाय आईटीसी शेयर्स. बट द थिंग इज कि आपके पास अभी पैसे नहीं है बाई करने के लिए. यू वांट टू बाय दैट एट सम लेटर पॉइंट, एट सम पॉइंट. sorry, you have to buy ITC, you want to buy ITC shares at some later point in time. तो let's suppose आप सोचते हो कि let's suppose एक मंथ बाद आप आईटीसी के शेयर को बेसिकली आप बाई करने का सोचते हो, डिसाइड करते हो कि एक मंथ बाद आईटीसी का शेयर बाई करना है. लेकिन आपको डर लग रहा है कि यार कहीं एक मंथ बाद 220 या 225 का वो हो ना जाए शेयर. तो आप क्या करते हो? सपोज आप क्या करते हो कि किसी के पास जाते हो, किसी इंसान के पास जाते हो जिसके पास आईटीसी का शेयर पड़ा हुआ है. ठीक है. इसके पास जाते हो एंड यू आस्क हिम कि कैन यू गिव मी आईटीसी शेयर्स. देन ही सेज कि ठीक है, मैं आपको आईटीसी के शेयर दे देता हूँ इन 211 रुपीज. लेट सपोज आप क्या 211 रुपए में आके खरीद लेना एक महीने बाद. लेट सपोज इतने पे डील हो जाती है कि 211 रुपए में खरीद लेना एक महीने बाद आके. तो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज यू आर डिसाइडिंग द फ्यूचर प्राइस ऑफ समथिंग टुडे. आपने आज इस आदमी से डिसाइड किया कि ठीक है, फ्यूचर में आई विल बाई आईटीसी शेयर्स विथ यू. कुछ टाइम के बाद आपसे आईटीसी के शेयर्स बाई कर लूंगा इतने टाइम के बाद में. आज ही प्राइस डिसाइड हो गया कि क्या प्राइस है. सो दिस टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज कॉल्ड अ फॉरवर्ड एग्रीमेंट या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. एंड एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अगर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा होता है तो उसी को कहते हैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट. नथिंग एल्स. सिंपल. फ्यूचर्स मतलब नथिंग एल्स बट अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विच इज ट्रेडेबल ऑन एक्सचेंज. तो आपने क्या किया कि सिंपल सा ये हुआ कि आपने आईटीसी को फ्यूचर में बाई करने के लिए आपने क्या किया कि लाइक यू पेड सम टोकन अमाउंट एज एडवांस. कोई छोटा सा अमाउंट एडवांस दे दिया आपने एंड आईटीसी का प्राइस ये ले लिया. अब आपको क्या करना होगा? व्हेन द एक्सपायर जो जब एक मंथ हो जाएगा, व्हेन द टाइम पीरियड विल फिनिश ऑफ, तब हम लोग कहेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है. एंड व्हेन दैट कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्स, आपको उस पॉइंट पे यू बेसिकली यू कैन बाई आईटीसी शेयर्स एट 211 रुपीज में. बेसिकली जिससे भी हुआ है उसको बाकी का पैसा देके 211 पे डिलीवरी ले लेनी है. सिंपल. सो दिस इज अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट. किसी को कोई भी डाउट है तो यू कैन पिंग. नाउ लेट मी इसमें एक छोटी सी कंडीशन और डाल देते हैं. लेट सपोज लाइक मैं यहाँ पे गया था. आई वांटेड टू बाई, दिस इज पर्सन ए जिसको आईटीसी लेना था. ठीक है. लेट सपोज इसको आईटीसी का शेयर लेना था. ही पर्सन बी के पास जाके बोलता है कि ठीक है 211 में मैं ले लूंगा एक महीने बाद. नाउ लेट सपोज इसी में एक कंडीशन और दे दी जाए
if let's suppose if I say कि I want to buy ITC at 211 1 month from now if I want to, ठीक है। ये कंडीशन इसने इस लेट सपोज ऐसी कोई कंडीशन लगा देते हैं। लेट सपोज इसमें एक कंडीशन ऐसे आती है कि पर्सन ए जो है वो बोलता है कि भाई आईटीसी के शेयर्स आई वांट टू बाई एट 211, ठीक है, 1 मंथ फ्रॉम नाउ। लेकिन इफ आई वांट टू, अगर मेरा मन करेगा तो एल्स आई वांट बाई। तो ये पर्सन बी जो है, ये दिस पर्सन बी, ही व्हाट ही डज इज, इसको लगता है यार ये तो काफी इनकरेक्ट सा सौदा हो रहा है। सो व्हाट ही डज इज ही गिव्स अ थॉट एंड देन ही रियलाइजेस कि नहीं यार, एक्चुअली इट इज नॉट वेरी, मतलब बहुत गलत सौदा नहीं है। इसमें हम लोग देखते हैं 3 केसेस देखते हैं, ठीक है, कैसे इसके डिफरेंट केसेस देखते हैं। फर्स्ट केसेस, अगर आईटीसी का प्राइस सपोज 208 हो जाता है तो क्या होगा, ए और बी दोनों के केसेस हम लोग देखेंगे। सेकंड केसेस, लेट्स सपोज आईटीसी का प्राइस 210 रहता है, ठीक है, जो अभी करंट मार्केट प्राइस है। एंड थर्ड 211, सॉरी, जितने पे अभी ट्रेड हो रहा है, लेट सपोज 211 होता है मंथ के एंड में। एंड थर्ड केस लेते हैं, लेट सपोज आईटीसी का प्राइस 215 होता है। तो इन दोनों केसेस में होगा क्या, इफ 208 प्राइस चल रहा होगा आईटीसी का, सो दिस पर्सन ए विल नॉट गो टू पर्सन बी ना, वो आएगा ही नहीं उसके पास। वाई विल ही बाई एट हायर प्राइस जब मार्केट में सस्ते में मिल रहा है। सो पर्सन ए, केस ए में पर्सन ए विल नॉट कम एंड पर्सन बी, मतलब दिस कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी एक्सरसाइज, तो कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। जब प्राइस 211 हो रहा है तो उस केस में क्या हो रहा है, ये पर्सन इस ए पर्सन ए बी के पास जाए चाहे ना जाए, बोथ केसेस में कोई लाइक डज नॉट, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन केस थर्ड केस क्या होगा कि ऑब्वियसली अगर मार्केट में 215 हो गया प्राइस, तब तो ये पर्सन चला जाएगा ए, अगर ऐसी कंडीशन ये लेके रखा है। तो पर्सन ए विल गो टू बी एंड बी को लॉस होगा। सो व्हाट, बी को यही थॉट आता है एंड बी क्या कहता है कि ठीक है, मैं ये कंडीशन रेडी हूँ ये कंडीशन के लिए, बट व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू पे ₹1 टू मी राइट नाउ, बस। बाकी क्या कहते, ये चीज दे दो एंड ये कंडीशन इफ आई वांट टू वाली राइट खरीद लो, इफ आई विश टू वाली राइट खरीद लो, जस्ट पे मी ₹1, ठीक है। अब इस केस में प्रॉफिट लॉस देखते हैं, ए और बी दोनों के प्रॉफिट लॉसेस देखते हैं, ठीक है। ए और बी दोनों के प्रॉफिट लॉसेस देखते हैं। ये पर्सन ए सपोज है एंड दिस, लेट्स सपोज दिस इज पर्सन बी, ठीक है। और दोनों केसेस में हम लोग पीएनएल देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस में जस्ट सेकेंड, सो फर्स्ट केस में अगर प्राइस टू, लेट्स अज्यूम ये पे ₹1 वाली कंडीशन हो जाती है, तो जैसे ही ये कंडीशन होगी, व्हाट विल हैपन इज, फर्स्ट केस में क्या होगा, पर्सन ए ने पहले -1 रुपीज तो दिया ही हुआ है, साथ साथ ये 208 रुपीज पे, साथ साथ व्हाट विल हैपन इज, ये क्या कहते हैं, मार्केट में 208 का मिल रहा है और यहाँ पे 211 का मिल रहा है। सो दिस पर्सन ए विल नॉट कम, तो पर्सन ए को -1 का लॉस हुआ और पर्सन बी को +1 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। सेकंड केस में क्या होता है कि पर्सन ए, लेट्स सपोज प्राइस 211 है, तो पर्सन ए आए बी के पास चाहे ना आए, दोनों केसेस में क्या है, पर्सन ए को -1 का लॉस है, पर्सन बी को +1 का प्रॉफिट है। थर्ड केस में लेट्स सपोज पर्सन ए आता है, तो थर्ड पर्सन ए आता है तो व्हाट विल हैपन इज ही विल, -1 तो उसने पहले ही दिया हुआ है, साथ साथ 211 में लेके मार्केट में 215 पे बेच देगा, बिकॉज प्राइस 215 चल रही है। सो ही विल अर्न +4। सो बेसिकली ₹3 का प्रॉफिट हो रहा है एंड यहाँ पे ही इज अर्निंग बेसिकली +1। और मार्केट में क्योंकि ₹4 महंगे में बिक रहा है, इसको सस्ते में बेचना पड़ रहा है, सो इज बेसिकली लूजिंग। सो बेसिकली इस केस में क्या हो रहा है यहाँ पे, uh, इस केस में ही इज अर्निंग ₹3 एंड ही इज लूजिंग ₹3। बाकी दोनों केसेस में ही इज अर्निंग ₹1। तो अगर हम लोग, तो ये बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि इस केस में द पर्सन हु सोल्ड दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ राइट, दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ पावर, दैट पर्टिकुलर टाइप, बेसिकली ये जो ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट जो ये राइट हुआ है, ये ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट की आई वांट टू बाय आईटीसी एट इतने 1 मंथ फ्रॉम नाउ इफ आई विश टू,
इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को ही कहते हैं ऑप्शंस का कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट में ये इफ वाली डेफिनेशन नहीं होती, ऑप्शन में डेफिनेशन होती है। एंड डेफिनेशन से ये केस होता है, ये बेसिकली चीजें, दीज थिंग्स हैपन। व्हाट हैपेंस इज बेसिकली, व्हाट हैपेंस हियर इज कि person B is basically selling an options contract to person A, and person A is buying an option contract from person B. अब यहाँ पे हम लोगों ने P&L दोनों का देख लिया, प्रॉफिट लॉस देखते हैं, हम तीनों केसेस में देखा कि पर्सन बी को मैक्सिमम प्रॉफिट 1 का हो रहा है और लॉसेस 1 से ज्यादा हो सकते हैं। कभी ऐसा हो सकता है आईटीसी का प्राइस 300 हो जाए, अनलिमिटेड लॉसेस के चांसेस हैं। और पर्सन ए ऑन दी अदर हैंड, इसके लॉसेस लिमिटेड है एंड प्रॉफिट्स आर अनलिमिटेड। तो अगर लेट सपोज हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, लेट सपोज ऐसे, क्या कहते हैं, ऐसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं पर्सन ए का और पर्सन बी का। ठीक है, पर्सन ए आईटीसी का प्राइस लेट सपोज ये 211 है सपोज। तो पर्सन ए को अभी उसके पहले -1 का लॉस हो रहा है और उसके बाद जितना ज्यादा ऊपर जाते जा रहा है उतना प्रॉफिट हो रहा है। तो बेसिकली क्या होगा, पर्सन ए को -1 का लॉस हो रहा है हर केस में। जैसे ही आईटीसी का शेयर का प्राइस जब इतना हो रहा है एग्जैक्ट 211, तब भी उसको लॉस हो रहा है। जब उसका शेयर का प्राइस 212 होगा लेट सपोज यहाँ पे, तो यहाँ पे व्हाट विल हैपन इज ग्राफ विल गो हेयर। तो ऐसा कुछ ग्राफ हुआ, पर्सन ए का ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, सेकेंडली पर्सन बी का ग्राफ देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, पर्सन बी का ग्राफ देखते हैं, इसका प्रॉफिट हो रहा है 1 का प्रॉफिट हो रहा है हर केस में जब तक प्राइस नहीं जा रहा है, एंड जैसे ही प्राइस ऊपर हो रहा है इसका ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस ऑपोजिट। मतलब पर्सन बी इज बेसिकली गेटिंग लिमिटेड प्रॉफिट्स एंड अनलिमिटेड लॉसेस। पर्सन ए के पास है कि लिमिटेड लॉसेस हो रहा है लेकिन अनलिमिटेड प्रॉफिट के चांसेस हैं। तो ये आइडियोलॉजी हो गई। अगर ऑप्शन कोई बाई कर रहा है, दिस पर्सन ए, इफ समबडी इज बाइंग एन ऑप्शन, सो ही स्टैंड्स एट लाइक गेनिंग अनलिमिटेड और लॉसेस उसके लिमिटेड होते हैं। सिमिलरली अगर ऑप्शन कोई सेल कर रहा है तो उसके प्रॉफिट्स लिमिटेड हैं एंड लॉसेस उसके अनलिमिटेड हो रहे हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड एक बेसिक से आइडियोलॉजी कि ऑप्शन बायर और सेलर की आइडियोलॉजी क्या होती है। ऑप्शन ए, सी ए को प्रॉफिट कब हो रहा है, जब ए को प्रॉफिट तभी हो रहा है जब उसने जो सोचा वो कंफर्म हो उसके प्रॉफिट। लेट सपोज ए को लगता है कि प्राइसेस विल गो अप, तभी ही विल बाय एन ऑप्शन, राइट। इफ प्राइसेस गो अप अगर प्राइसेस जा रही हैं देन ही विल बाय एन ऑप्शन। लेकिन बी की आइडियोलॉजी क्या है कि ही विल सेल एन ऑप्शन। लाइक अगर बी सोचता है कि प्राइसेस विल रिमेन फ्लैट, तब क्या है, कौन जीत रहा है, देन ऑल्सो बी इज अर्निंग, राइट। इफ प्राइसेस गो डाउन देन ऑल्सो बी इज अर्निंग। लेट सपोज प्राइस थोड़ा सा ऊपर आ जा रहे हैं, तो इवन इफ ही इज नॉट 100% इनकरेक्ट देन ऑल्सो ही इज नॉट लूजिंग। तो पर्सन बी जो है ही इज गेनिंग हर केस में। अगर ही इज नॉट वेरी रॉन्ग, जब तक वो बहुत ज्यादा गलत नहीं हो रहा है, मतलब अपने के लाइक उसके अगेंस्ट एक ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है, तब तक ही इज बेसिकली गेनिंग। सो दिस इज द आइडियोलॉजी। पर्सन ए को क्या लगता है, जो ऑप्शन बाई कर रहा है उसका आइडियोलॉजी ये होती है कि ऊपर जाने वाला है प्राइस। ऑप्शन सेल जो कर रहा होता है उसकी आइडियोलॉजी बेसिकली क्या होती है कि ही थिंक्स कि प्राइसेस विल आइदर रिमेन फ्लैट, या नीचे जाने वाले हैं, या अगर ऊपर जाएंगे तो भी थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा। सो दिस इज द आइडियोलॉजी। तो ये मतलब ये आइडियोलॉजी जैसे ही हमें पता चल जाती है, व्हाट हैपेंस इज कि मतलब इसी आइडियोलॉजी के ऊपर ही सारी ऑप्शन फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बनी हुई हैं। बेसिकली पर्सन बी यहाँ पे अनलिमिटेड लॉसेस हो सकते हैं पर्सन बी को, एंड प्रॉफिट्स आर जस्ट लिमिटेड। सो होता क्या है रियल केस में, रियल वर्ल्ड में ऐसा क्या सिनेरियो होता है, मतलब ऐसी कौन सी जगहें होती हैं जहाँ पे अनलिमिटेड लॉसेस हो सकते हैं एंड प्रॉफिट लिमिटेड होते हैं। लाइक इंश्योरेंस सेक्टर में जो इंश्योरेंस बेचती है कंपनीज, वहां पे भी ऐसा होता है कि वो थोड़े से प्रीमियम के लिए बहुत ज्यादा रिस्क लेने के लिए रेडी होती हैं, बट दे नो दैट एट द एंड इंश्योरेंस से फायदा ही होने वाला है। सो सिमिलरली ऑप्शन सेलर्स यहाँ पे भी इंश्योरेंस कंपनी जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, हेयर ऑल्सो ऑप्शन सेलर इज अ बिग पर्सन जिसको मार्केट का अच्छा खासा नॉलेज है, वरना ही वोंट रिस्क। इसके ऊपर ही सारे फ्यूचर ऑप्शन स्ट्रेटजीज बनी है। मैंने बेसिक में बता दिया व्हाट इज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ये टॉपिक नहीं था वेबिनार का, बट सिंस समवन आस्क्ड एंड आई फेल्ट कि थोड़ा सा जरूरी है, इसलिए मैंने बेसिक बताया। व्हाट वी विल डिस्कस हियर इज बेसिकली कि थोड़ी बेसिक we will discuss certain option strategies, futures and option strategies, and how to earn money using FNO hedging। ठीक है, सो मैं आपको सिंपल सा एक बेसिक ग्राफ दिखाता हूँ। लेट सपोज
कोई भी शेयर, इफ एनीबडी हैज एनी डाउट्स टिल नाउ फ्यूचर्स ऑन ऑप्शंस में, अगर कुछ भी किसी को डाउट है देन ही और शी कैन पिंग. बाकी अदरवाइज आई एम, लेट्स प्रोसीड विथ लाइक कस्टम स्ट्रेटजी. कुछ देखते हैं हम लोग, लेट्स ट्राई समथिंग. ठीक है. सो लेट अस अज्यूम निफ्टी का ही हम लोग देखते हैं. लेट अस अज्यूम कि हम लोग, लेट्स अज्यूम दैट वी आर, somebody has asked a question that futures expire in cash. So like, I don't understand like what exactly are you trying to ask. So please can you elaborate your question because थोड़ा incomplete है ये. So now पहले हम लोग एक कुछ strategies को देखते हैं futures और options में. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, एक सिंपल सा जो अभी मैंने ऑप्शंस का डेफिनेशन बताई, बेसिकली वो कॉल ऑप्शन की डेफिनेशन होती है बाइंग के केस में. हम लोग बाइंग का केस एनालाइज किए. दैट इज एक्चुअली नॉट द डेफिनेशन ऑफ ऑप्शन, दैट इज डेफिनेशन ऑफ कॉल ऑप्शन. कॉन्सेप्ट वाज एवरीथिंग सेम. Okay, so guys, somebody you are asking how to exercise options and all these things. See, मैंने अभी just बोला कि like let's focus on how to make money from options. This is the concept of this webinar. Assuming that your advisor will give you correct recommendation, कैसे trade करना है वो हमें देखना है. How to make money from options. Do not ask irrelevant questions like how to, जो भी questions है, because let's not deviate from the topic. Let's just ask यही चीजें कि how to analyze basically and how to earn money from the recommendations which I give on futures and options. So let's suppose आपको लगता है निफ्टी का चार्ट हम लोग देखते हैं and आपको लगता है कि निफ्टी में let's suppose if you are bullish, ठीक है, कुछ भी देखते हैं. लेट्स सपोज आपको लगता है निफ्टी ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है. देखते हैं हम लोग चार्ट से कुछ एनालाइज करते हैं. लेट्स सपोज ये निफ्टी का चार्ट है एंड हियर यू थिंक, यू फील एज इफ कि अच्छा ओके निफ्टी विल, लेट्स सपोज निफ्टी विल गो अप. ठीक है, आपको लगता है कि निफ्टी ऊपर जाने वाला है. ठीक है, सो व्हाट विल हैपन इज यू कैन बाई अ कॉल ऑप्शन. मतलब अभी 15,670 चल रहा है. सो व्हाट यू कैन हैपन इज यू कैन सिंपली बाई अ कॉल ऑप्शन. एक आगे के किसी स्ट्राइकर, लेट्स सपोज 15,700 का आपने कॉल ऑप्शन ये बाई किया. ठीक है. सो अब वो क्या, हमने कौन सा बाई करना है, दोस थिंग्स आर अदर. अब हम लोग पीएनएल इसके एनालिसिस करते हैं कि इसमें प्रॉफिट लॉस क्या होगा. सो अगर आपने कॉल ऑप्शन बाई किया तो वही चीज है, सिंपल, ये आपका प्रॉफिट लॉस का ग्राफ होगा. ठीक है, दिस इज योर प्रॉफिट लॉस का ग्राफ. योर मैक्सिमम लॉसेस इज फिक्स. वही प्रीमियम अमाउंट जो आपने बेसिकली, जितना भी आपने प्रीमियम पे किया है इसको बाई करने के लिए, वही आपने, वही उतने का ही लॉस हो रहा है जो इनिशियल डिपॉजिट. सो इनिशियल डिपॉजिट इन दिस केस इज बेसिकली 6,683. एक्चुअली ये ज्यादा इसलिए लग रहा है बिकॉज निफ्टी में लॉट साइज होती है, 50 का लॉट साइज होता है. सो व्हाट हैपेंस इज कि 75 का लॉट साइज होता है. तो बेसिकली वॉट एवर इज द प्राइस ऑफ दिस ऑप्शन, जो भी प्राइस होगा इस ऑप्शन का, दैट मल्टीप्लाइड बाई द लॉट साइज, इतना बेसिकली. सो योर मैक्सिमम लॉसेस इज फिक्स एंड मैक्सिमम प्रॉफिट्स आर, मतलब अनलिमिटेड प्रॉफिट. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको देखना है कि कितना प्रॉफिट हो सकता है, तो यू कैन सिंपली सी ये प्रॉफिट हो रहा है. नाउ लेट्स सपोज आपने ऐसा कुछ है सेम तरीके, ऐसा, आई जस्ट शोड यू सिंपल कि कैसा ग्राफ होता है कॉल ऑप्शन का. अब मैं बताता हूँ कि व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट आर एसोसिएटेड विद इट. सो लेट्स सपोज आप निफ्टी में आप करते हो. लेट अस ट्राई टू बिल्ड अ स्ट्रेटजी. फर्स्ट स्ट्रेटजी व्हिच आई विल एक्सप्लेन हियर इज द पुट हेज स्ट्रेटजी. तो पुट हेज स्ट्रेटजी में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक फ्यूचर्स बाई करते हैं निफ्टी का. पुट हेज स्ट्रेटजी इंसान तब यूज करता है जब आपको लगता है कि कोई चीज का प्राइस ऊपर जाने वाला है. लेट सपोज आप निफ्टी में बुलिश हो या कोई स्टॉक में आप बुलिश हो, यू थिंक कि उसका प्राइस ऊपर जाने वाला है. प्लीज गाइस, अगर आपको स्ट्रेटजी या कुछ ये सब नहीं समझ में आ रहा है, जस्ट मतलब ठीक है, इग्नोर. योर मेन पॉइंट हियर शुड बी कि व्हाट आर द रिस्क्स एसोसिएटेड विद एफएनओ हेजिंग. प्रॉफिट कितना मिलेगा, लॉस कितना होगा, पैसे कितने लगेंगे, कैसे करना है. सिंपल दोस थिंग्स ही आपका एम होना चाहिए इस वेबिनार में. सो लेट सपोज आपको लगता है, मतलब मैंने मुझे लेट सपोज लगता है कि निफ्टी ऊपर जाएगा, तो मैंने ये पुट हेज स्ट्रेटजी मेरे माइंड में आई कि हाँ ठीक है, पुट हेज स्ट्रेटजी दे देते हैं. तो पुट हेज स्ट्रेटजी के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जैसे लेट सपोज उसमें क्या होगा, बेसिकली हम लोग फ्यूचर्स बाई कर लेते हैं. सिंपल, किसी भी चीज का प्राइस ऊपर जाने, कोई भी चीज आपको लगता है कि कोई भी चीज को बाई करना है, तो सिंपल आप उस चीज को बाई कर लेते हो. बट द थिंग इज हम लोग क्योंकि एफएनओ में काम कर रहे हैं सारी चीजें, सो वी वोंट गो इन कैश मार्केट, वी विल बाई ओनली इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. क्यों? क्योंकि अभी हमने जस्ट देखा कि फ्यूचर्स में क्या है कि पैसे कम देने पड़ रहे हैं, पूरे पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं. फ्यूचर का लॉजिक ही तभी आया, यूज ही तभी आया, ये कॉन्सेप्ट ही तब आया
जब किसी को लगता है कि ये करना है बट उसके पास पूरे पैसे नहीं है अभी वो करने के लिए, बट ही वांट्स टू एक्सप्लॉइट सम अपॉर्चुनिटी। तो व्हाट वी हैव टू डू इज सिंपल, फ्यूचर्स में वही करता है जिसके पास पैसे नहीं होते हैं, सिंपल। नाउ द थिंग इज कि बस ये बात होती है कि फ्यूचर्स में लॉट साइज का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके वजह से मिनिमम एक फिक्स अमाउंट होती है। सो व्हाट हैपेंस इज कि मार्केट में अगर आपके पास 10-15 हज़ार से इफ यू आर स्टार्टिंग इन द मार्केट, तो इट इज लाइक जीरो फॉर द मार्केट। अगर आप एटलीस्ट 8-10 लाख से स्टार्ट कर रहे हो, देन ओनली मार्केट फील्स कि हाँ यू आर एंटरिंग इनटू द मार्केट। सो वो एक्चुअली मार्केट के लिए स्टार्टर्स होता है, इस वजह से समटाइम्स इट फील्स कॉस्टली बट एक्चुअली नहीं होता है। सो लेट्स सपोज अभी आपको लगता है कि कोई भी चीज शेयर्स में अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर ओएनजीसी का शेयर ऊपर जाने वाला है, तो आप ओएनजीसी के शेयर्स बाई कर लेते हो जितनी भी क्वांटिटी आपके पास होती है, कैपेसिटी। लेट्स अज्यूम, हम लोग फिलहाल के लिए अज्यूम करते हैं कि 1 लॉट के बराबर, जो भी 1 लॉट में जितना भी क्वांटिटी होती है निफ्टी के केस में, लेट्स सपोज ये बाई हम लोग अज्यूम करते हैं कि सारे लोगों के पास 75 क्वांटिटी बाई करने की कैपेसिटी है मिनिमम। ठीक है, अज्यूमिंग उस इस अजम्पशन में हम लोग कुछ और चीजें भी देख रहे हैं, वो एंड वो बेसिकली एट द एंड मैं बताऊंगा। सो लेट्स अज्यूम कि आपको लगता है कि मुझे लगता है कि निफ्टी ऊपर जाने वाला है, तो मैं हम लोग एक फ्यूचर्स बाई करेंगे। साथ साथ फ्यूचर्स बाई करने के साथ साथ व्हाट वी डू इज वी प्लेस अ स्टॉप लॉस, राइट? वी प्लेस अ स्टॉप लॉस। तो हम लोग स्टॉप लॉस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग कुछ एक एक क्या कर रहे हैं, हम लोग एक पुट ऑप्शन बाई कर ले रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि हम लोग बेसिकली स्टॉप लॉस लगा दे रहे हैं इसके ऊपर, बेसिकली समथिंग लाइक दिस। 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड, थोड़ा बड़ा देखिए, या सो लेट सपोज हमने क्या किया, एक फ्यूचर बाय किया, उसके साथ साथ हमने एक राइट खरीद ली कि चाहे कुछ भी, अभी जैसे हमने एक लास्ट केस देखा था ना कि वो इंसान राइट खरीद रहा था टू बाय समथिंग एट आईटीसी एट 211। सेम तरीके से पुट ऑप्शन होता है, वो कॉल ऑप्शन का डेफिनेशन था, पुट ऑप्शन में राइट मिलती है टू सेल समथिंग एट अ फिक्स्ड प्राइस। तो लेट सपोज आपने वो राइट खरीदी, वो राइट खरीदने के लिए आपने ऐसा कुछ किया जिससे कि प्रॉफिट लॉस का ग्राफ ऐसा हो गया कि अब निफ्टी चाहे कितना भी नीचे जाए, मैंने राइट खरीद लिया है कि 15,600 में तो बेच ही लूंगा उसको। तो इस केस में क्या हो रहा है, आपके मैक्सिमम लॉसेस फिक्स हो जा रहे हैं। सी हेयर, आपके मैक्सिमम लॉसेस, जैसे ही आपने ये चीज किया, आपके मैक्सिमम लॉसेस फिक्स हो जा रहे हैं। आपने एक फ्यूचर्स बाई किया है, साथ साथ आपने ये एक ऑप्शन बाई किया जिसमें आपके मैक्सिमम लॉसेस फिक्स हो रहे हैं एंड मैक्सिमम प्रॉफिट इज अनलिमिटेड। सो इफ एनीबडी आस्क्स मी कि रिस्क क्या है इसमें, मैं आपको दिखाता हूँ रिस्क रिस्क रिवॉर्ड इसमें क्या है, मैं आपको ये दिखाता हूँ। सी मैं ये दिखा रहा हूँ, लेट्स यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट्स आर अनलिमिटेड, कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम लॉस 10,791 का हो रहा है। एंड इसमें इस पर्टिकुलर ट्रेड को करने के लिए 52,685, मतलब 53,000 के करीब करीब रुपए, इतने रुपए ब्लॉक हो रहे हैं, इतने मार्जिन ब्लॉक हो रही है। ऐसा नहीं कि इतने पैसे लगने वाले, इतनी मार्जिन यूज होगी जब दोनों चीज हो जाएंगी। सिंस यू हैव फिक्स्ड द मैक्सिमम लॉसेस, सी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में शेयर कैश मार्केट की तरह नहीं होता कि यार स्टॉप लॉस पे एग्जीक्यूट करना कोई भूल गया तो। यहाँ पे यू आर बाइंग अ राइट, मार्केट में चाहे कुछ भी हो, शेयर कंपनी डूब जाए, चाहे कुछ भी हो, यू विल बी एबल टू एक्सरसाइज दिस राइट, सिंपल, इट विल बी डन फॉर श्योर। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मैक्स लॉस आपके फिक्स हुए हेयर इन दिस केस, व्हाट आपके मतलब जो भी है मैक्सिमम लॉसेस हैव बीन फिक्स्ड। अभी लेटस यहाँ पे ये है मैक्सिमम लॉसेस एंड ये आपका कैपिटल मार्जिन ब्लॉक हो रहा है। अभी हम लोग एक बार रिमूव करते हैं ये जो ऑप्शन हमने बाई किया था, जो स्टॉप लॉस हमने बेसिकली, सी व्हाट हैपेंड कि फर्स्ट केस में हम लोग एक फ्यूचर बाई कर रहे थे, फ्यूचर्स को बाइंग की तरह को बाई करना, जस्ट अज्यूम एज इफ कि यू आर बाइंग समथिंग इन कैश, सिंपल। एंड उसमें जैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं आप, उसे जैसे इसमें भी आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं बाई बाइंग अ पुट ऑप्शन, बाई बाइंग अ राइट टू सेल दिस वट एवर बी द केस, चाहे कुछ भी हो, चैन से सोना है, इसलिए लाइक यू आर बाइंग दिस पुट ऑप्शन। सी व्हाट हैपेंस, अगर लेट सपोज पुट ऑप्शन नहीं बाई कर रहे होते ना, सिर्फ फ्यूचर्स को बाई कर रहे होते, तो आपको क्या करना होता, निफ्टी का करंट प्राइस क्या चल रहा है, करंट प्राइसेस 15,699 या 15,700 के आसपास सपोज है, करंट प्राइस 15,680 मान लेते हैं या 650 मान लेते हैं, 670 इज द प्राइस ना। तो 15,670 70 इंटू 75 करते हैं, जो निफ्टी की लॉट साइज है, दैट इज बेसिकली 11.75 लाख रुपीस। ये देखिए आपको दिख रहा है 11.75 लाख रुपीस यहाँ पे क्लियर। सो अगर निफ्टी, अगर आपको बाई करना है, निफ्टी का एक लॉट कैश में बाई करना होता तो 11.75 लाख रुपीस लग रहे होते।
अभी हमने क्या किया है, उसी सेम चीज को वी हैव या सो सेम चीज को अगर हम लोग फ्यूचर्स के थ्रू बाई करते हैं इंस्टेड ऑफ कैश, मतलब ऐसा कि कुछ पैसे अभी दे देते हैं, बाकी एक्सपायरी जिस भी दिन एक्सपायर होगा उस दिन बाकी का पैसा देंगे, तो आपको सिर्फ 1.66 लाख देना हो रहा है। ठीक है। अब सी, एज अ ट्रेडर आपको डिलीवरी नहीं लेनी है, आपको 1.66 लाख देके सच में निफ्टी खरीद नहीं लेना है। एक्चुअली निफ्टी में आपको मैंडेटरी स्क्वायर ऑफ करना ही होगा, निफ्टी थोड़ी ना कोई खरीद बेच सकता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसकी बस ट्रेडिंग हुई, एक्सपायरी से पहले आपको स्क्वायर ऑफ करना होगा, कट करना होगा पोजीशन को, बुक करना होगा प्रॉफिट या लॉस जो भी चीज, एग्जिट करना होगा बेसिकली। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको बाई करने के लिए 1.66 लाख लग रहे थे। द थिंग इज कि एज सुन एज यू बाय बॉट दिस पुट ऑप्शन जो मैंने बताया, पैसे भी कम हो जा रहे हैं, लॉसेस आर फिक्स। ठीक है, लॉस आपके कम हो रहे हैं, लॉसेस भी फिक्स हो जा रहे हैं सिर्फ 10,800 के। कितने पैसे लग रहे हैं वो भी फिक्स हो जा रहे हैं, लाइक कम हो जा रहे हैं पैसे, बिकॉज योर मैक्सिमम लॉस फिक्स है ना। तो यार ब्रोकर क्या जरूरत है ब्रोकर को ज्यादा मार्जिन लेने की, वो थोड़ा सा ज्यादा वैसे पैसे आपसे मार्जिन ले रहा है थोड़ा सा ज्यादा। सो इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग कि ये आपका मैक्सिमम लॉस है, ये प्रॉफिट है। नाउ लेट अस अज्यूम कि आप सोचते हो कि निफ्टी 15,670 से सपोज 100 पॉइंट प्रॉफिट जाता है ऊपर, प्लस मूवमेंट करता है। ठीक है, लेट्स अज्यूम 15,670 के बदले 15,770 निफ्टी चला जाता है। तो जस्ट लुक एट व्हाट इज, तो आप देखिए कि आपका प्रॉफिट लॉस क्या होगा। लेट्स सपोज आज ही के दिन जाता है, तो देखते हैं हम लोग प्रॉफिट लॉस का ग्राफ देखते हैं। ठीक है, अगर निफ्टी, सी हाउ प्रॉफिट लॉस इज चेंजिंग, मैं जैसे जैसे निफ्टी का प्राइस बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे प्रॉफिट लॉस बढ़ रहा है। निफ्टी जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वैसे दिस प्रोजेक्टेड प्रॉफिट इज चेंजिंग। जैसे जैसे निफ्टी का प्राइस आई एम चेंजिंग, यहाँ पे ये बेसिकली ग्राफ है और कुछ नहीं है, सिंपल। सो यहाँ पे व्हाट यू हैव टू डू इज प्रोजेक्टेड प्रॉफिट चेंज हो रहा है नाउ। अब लेट अस लुक एट रिस्क्स क्या एसोसिएटेड है। सी, इसमें रिस्क है ऑफ दिस, सी व्हाट इज हैपनिंग कि आपने क्या किया, आपके अभी जैसे इसमें रिस्क एंड ऑल एवरीथिंग मैं एक बार बताता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। अभी करंट प्राइस था 15,670, निफ्टी प्राइस इज 15,670। ठीक है, 570 आई गेस, जस्ट अ सेकेंड, 15,500, ठीक है। सी, अभी हो क्या रहा है बेसिकली, एज ऑफ नाउ जैसे आपने ऑप्शन खरीद लिया, बेसिकली एज ऑफ नाउ अभी आपने लिया, अगर निफ्टी आप एकदम गलत हो जाते हो और आपके अगेंस्ट में जाता है तो कितना भी निफ्टी नीचे जाए आपका मैक्सिमम लॉस यहाँ पे फिक्स है, सिर्फ इतना है। एंड एज ऑफ नाउ जब आपने बाई किया ये सारी चीजें, तो अभी एज ऑफ नाउ डिपेंडिंग ऑन लेवल ये ऐसे चल रहा है, जैसे जैसे निफ्टी का प्राइस ऊपर जाएगा, सी है मैं आपको दिखाता हूँ, वैसे वैसे आपको प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, एक एक रुपए के प्रॉफिट। निफ्टी 50,680 से सपोज 15,700 हो गया, तो आपको प्रॉफिट होगा 1452 रुपीज का, इतना। सो यहाँ पे बेसिकली जैसे जैसे एक एक पॉइंट अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो कितना कितना पॉइंट का मूवमेंट हो रहा है। एक पॉइंट का मूवमेंट हुआ तो 1502 हो गया। आप सपोज यहाँ से एक पॉइंट और बढ़ाते हैं, सी प्रॉफिट 1553। बेसिकली क्या हो रहा है, 51 पॉइंट्स का मूवमेंट हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे जैसे मूवमेंट हो रहा है वैसे वैसे इतने पॉइंट्स का प्रॉफिट लॉस हो रहा है। योर मैक्सिमम लॉसेस अगर आप एक्सपायरी वाले दिन, अगर आप इतना ज्यादा आप गलत हो जाते हो, लेट सपोज आप बहुत ही गलत होते हैं एक्सपायरी वाले दिन, तो व्हाट हैपेंस हियर इज बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक जस्ट अ सेकंड, एक्सपायरी वाले दिन अगर आप मैक्सिमम गलत होते हो तो यहाँ पे दिस इज द लॉस अमाउंट। अब इसको हम लोग साइकोलॉजिकली देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। सी, साइकोलॉजिकली पहली चीज कि निफ्टी कितना भी नीचे चले जाए आपका मैक्स लॉस इतना ही हो रहा है। सो व्हेन यू आर बुलिश ऑन एनीथिंग, जब आपको लग रहा है कि नहीं ये ऊपर आने वाला है, कितना ऊपर आएगा वो हमें नहीं पता, लेकिन व्हेन यू आर बुलिश ऑन समथिंग एंड आपको लगता है कि हाँ, बेसिकली व्हेन जब आपको लग रहा है, सो हियर व्हाट यू आर डूइंग इज बेसिकली यू हैव हेज्ड योर पोजीशन। आपने जो भी आपका जो भी ट्रेड था उसको बेसिकली आपने क्या किया है, आपने एक मैंडेटरी स्टॉप लॉस की तरह कुछ लगाया है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने ये देखा कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर आ जा रहा है तो इतने का प्रॉफिट होगा, 200 पॉइंट ऊपर आ रहा है तो इतने का प्रॉफिट होगा। वो सारी चीजें ऑब्वियसली एडवाइजर ही एनालाइज करके दे रहा है। बट द थिंग इज बाई कैसे करना है, इसको बाई करने का प्रोसेस मैंने बताया कि आपको क्या करना है, सबसे पहले फ्यूचर्स बाई करना है, सिंपल। उसका फ्यूचर्स बाई करना है। फ्यूचर्स बाई करते टाइम आपको यहाँ पे दिखा था कि 1.66 लाख रुपीस लग रहे थे।
उसके बाद आपको उसका ऑप्शन बाई कर लेना है। जैसे ही ऑप्शन बाई कर रहे हैं, आपकी मार्जिन कितनी यूज हो जा रही है? सिर्फ 52,000 यूज हो रही है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, सिर्फ इतने में रिस्क इज दिस मच। आपका कैपिटल यूज कितना हो रहा है? इतना। कहने के लिए दिख रहा है कि ओके, आपको इस पर्टिकुलर ट्रेड में मार्जिन जो यूज है उसका 20% का ऑलमोस्ट आपको लॉस दिख रहा है। बट द थिंग इज कि लेट्स अज्यूम कि आपका कैपिटल, जो भी कैपिटल है आपका, लेट्स अज्यूम आपका कैपिटल 10 लाख का कैपिटल है। सो 10 लाख में बेसिकली निफ्टी का ये वाला पर्टिकुलर ट्रेड करने के लिए आपको मैंने दिखाया ना कि 11 लाख का बेसिकली कैपिटल लग रहा था, 11.75 लाख, क्लोज टू 12 लाख। सो बेसिकली अगर आपको 12 लाख रुपए अगर आपका कैपिटल है, 12 लाख रुपए ट्रेड करके, 12 लाख रुपए से आप ट्रेड करके जो प्रॉफिट कमाते, सेम चीज यू आर एबल टू डू विद जस्ट 50,000 रुपीज, जस्ट 52,000 रुपीज। अब ये अमाउंट देखने में बड़ा लग रहा है, बट जस्ट इमेजिन कि अगर कोई आदमी 12 लाख से ट्रेड कर रहा होता, तो उसके लिए उसने क्या किया है, उसने अपने रिस्क को ट्रांसफर किया है किसी और पे। अपने रिस्क को वो पुट ऑप्शन बाई करके बेसिकली ये प्रीमियम जो भी है, ये अमाउंट पे करके आप उसने बेसिकली अपने रिस्क को ट्रांसफर किया है। 10,000 आप अगर कैलकुलेट करो परसेंटेज वाइज इन कंपैरिजन टू 12 लाख, इज लेस देन 1%। सो अगर आप एफएनओ में बेसिकली आप क्या कर रहे हो, एक्चुअल कैपिटल जो यूज हो रहा होता इस ट्रेड को करने के लिए, उसका एक्चुअल में सिर्फ 1-2% का ही रिस्क, सिर्फ 1% का ही रिस्क आपने लिया है, लेस देन 1% बेसिकली, उससे भी कम का आपने रिस्क लिया है। सो रिस्क वाइज दिस इज वेरी सेफ। मतलब वेरी, ये पूरा का पूरा चीज जो है, ये पूरी स्ट्रेटेजी आपको यूज ही की गई है कि इवन इन केस ऑफ लॉसेस आपका मैक्सिमम लॉस इज फिक्स। अब आप, द पॉइंट हियर इज कि आपको ट्रेड कैसे करना है, वो मैंने बताया कि आपको सबसे पहले फ्यूचर्स बाई कर लेना है इसका। उसके लिए इंश्योर करना है कि 1.5 लाख या जो भी अमाउंट थे वो पैसे आपके अकाउंट में होने चाहिए। दूसरा, उसके बाद जैसे ही आप ऑप्शन बाई करेंगे तो पैसे कम हो जाएंगे, बट इनिशियली आपके अकाउंट में थोड़ा ज्यादा पैसे होने चाहिए। नाउ सेकंड थिंग इज, इसमें मैंने सेकंड ये बताया कि एक्चुअल रिस्क देखा जाए तो इवन इन वर्स्ट केस यू हैव प्रोटेक्टेड योर लॉसेस। अब क्या है कि किसी के अकाउंट में, लेट सपोज मैं क्लियर कट सिनारियोस बताता हूँ कि किसको ट्रेड करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। अब अगर किसी के डीमैट अकाउंट में 1 लाख रुपए है, तो उसको क्या ये ट्रेड करना चाहिए? ऑब्वियसली नहीं। क्यों? क्योंकि वो फ्यूचर वाला तो बाई ही नहीं कर पाएगा, उसको बाई करने के लिए ही अकेले 1.44 लाख चाहिए। तो मिनिमम स्ट्रैटेजी को ट्रेड करने के लिए इसमें, अगर निफ्टी में कर रहे हैं, ये मैंने जो बताया, इसमें यू नीड 1.6 या जो भी लाख का अमाउंट आया था, 1.5 लाख रुपए के आसपास आपको अमाउंट चाहिए बेसिकली। सो व्हाट हैपेंस हियर इज कि अ, अगर आपके पास मिनिमम इतना अमाउंट है, देन यू कैन ट्रेड। अब अगर लेट सपोज आपके पास 1.5 लाख अमाउंट है, तो आप क्या देख रहे हो कि अगर लेट सपोज ये ट्रेड स्टॉप लॉस हिट कर जाता है, तो आपका कितना लॉस होगा कैपिटल का? 11,000 का लॉस होगा। मतलब क्लोज टू आपका जो भी कैपिटल है, उस कैपिटल का क्लोज टू 7-8% के आसपास का आपका लॉस हो जा रहा है। सो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से मैंने पहले भी पास्ट में भी बताया कि नेवर रिस्क मोर देन 2% ऑफ योर कैपिटल। सो उससे हमें पता चलता है कि लाइक, अगर 2% ऑफ कैपिटल के हिसाब से देखा जाए, तो 2% ऑफ, लाइक अगर लेट सपोज आपका ट्रेडिंग कैपिटल 5 लाख के आसपास है, सो इन दैट केस मतलब यू कैन ट्रेड इन दिस, बिकॉज मैक्सिमम रिस्क इतना हो रहा है नाउ। आपको बस ये देखना है, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ये चेक पास हो गया, आपको बस ये देखना है कि एनालिसिस जिसने की है वो सही किया है कि नहीं किया है। नाउ लेट्स अज्यूम कि एनालिसिस इज करेक्ट, अगर आपको एडवाइजर पे ट्रस्ट है या जो भी है शोन यू गुड रिजल्ट्स, तो लेट्स अज्यूम कि एनालिसिस इज करेक्ट। तो आपको क्या करना है, इस स्ट्रेटजी में आपको बेसिकली इस तरीके से काम करना है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, लेट्स सपोज कि मंथ के एंड में क्या होता है कि निफ्टी, अभी 15,700 है ना, लेट्स सपोज मंथ के एंड में निफ्टी 10,000 का हो जाता है, सपोज 10,000 का हो जाता है। तो आपका क्या होगा, आपका लॉस पता है कितना हुआ होगा? एक्चुअली में सिर्फ यही 8-10 हजार जो अमाउंट है इतने का। नाउ व्हाट हैपेंस इज, मंथ के एंड में अगेन एडवाइजर को लग रहा है अरे यार अभी मार्केट एक्चुअली डाउन था, इट विल गो अप, डोंट वरी। कभी कभी होता है कि मार्केट इतने नहीं जा पाया उसके वजह से, या एक्सपायरी के दिन वो जस्ट नीचे क्लोज हुआ। तो इफ एडवाइजर आस्क यू टू रोल ओवर, तो रोल ओवर करना मतलब क्या होता है बेसिकली, सेल करना मतलब बेसिकली लॉस बुक कर लेना यहाँ पे, एंड जैसे ये जून एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट था, सेम तरीके से जुलाई एक्सपायरी का बाई कर लेना, सिंपल। सो आपने क्या किया रोल ओवर करने में, यस आपने पे किया मार्केट को इतना अमाउंट, बट द थिंग इज अभी भी आप पोजीशन में हैं। एंड जैसे ही लाइक व्हेन द मार्केट विल स्टार्ट रिकवरिंग, सी 15,700 से 16,000, सॉरी 10,000 पे अगर चला गया मार्केट, तब भी आपने सिर्फ इतना पैसा दिया। अब अगर सिर्फ 10,000 पे इतना ड्रास्टिक फॉल जब हुआ, आपने सिर्फ इतना सा दिया। नाउ लेट सपोज कि मार्केट राइज करना स्टार्ट करता है 10,000 से, आपने फिर से रोल ओवर किया, उस केस में अगेन सेम टाइप का कुछ स्ट्रेटेजी बन रही होगी, लॉस प्रॉफिट ऐसा ही हो रहा होगा। तो आप, मैंने आपको जस्ट दिखाया कि सी 10,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए निफ्टी का मूवमेंट कितना चाहिए,
निफ्टी को सिर्फ 200-300 का पॉइंट का मूवमेंट कमा, सी वी जस्ट सॉ कि 50 पॉइंट पर क्या कहते हैं, पर पॉइंट मूवमेंट इन निफ्टी वी वर अर्निंग 50 रुपीज। तो अगर लेट सपोज रोल ओवर के बाद, लेट सपोज यू व्हाट हैपेंस कि निफ्टी अगेन रिकवरी कर जाता है 10,000 से लेके सपोज 11,000 पे आ जाता है निफ्टी, लेट सपोज, ठीक है, 11,000 पे आ जाता है, 15,700 पे आने की बात नहीं है। तो व्हाट यू हैव अर्नड इज बेसिकली, यहाँ पे इस केस में आपने क्या किया होगा बेसिकली, 1,000 इंटू 50 रुपीज, बेसिकली 50,000 रुपए आपने इस केस में कमा लिए होंगे। एंड जब फॉल हो रहा था तो आपने सिर्फ 10,000 ही दिए। तो जस्ट सी कि इफ एडवाइजर इज करेक्ट, आप अगर एनालिसिस करेक्ट है, हो सकता है अगर वो 1 महीने या 2 महीने बाद होती है रोल ओवर के बाद, तो यस, नो डाउट अभी आपको पैसे पे करने हो रहे हैं, बट द थिंग इज आफ्टर एवरीथिंग क्लोजेस आउट, आफ्टर 3 मंथ जब वो हो रहा है, या 2 मंथ बाद हो रहा है, या 1.5 महीने बाद हो रहा है, जब भी वो चीज हो रहा है, एट द एंड अगेन यू आर इन नेट प्रॉफिट। So again you are in net profit. So basically मतलब what happens is कि actually में overall here is कि यहाँ पे जैसे अगर आपको किसी को भी किसी भी स्टॉक पे फंडामेंटल न्यूज अच्छी है या फिर मार्केट की डायरेक्शन आपको, if you know the direction of the market कि yes this will happen, थोड़ा टाइम लग सकता है, then what happens is कि आप बेसिकली कुछ नहीं कर रहे हो, आप बेसिकली बस थोड़ा सा कुछ ऐसा चार्ज दे रहे हो मार्केट में, कुछ ऐसा एक एक्सपेंस दे रहे हो बस बने रहने के लिए। जब ऊपर मूवमेंट स्टार्ट होगा तो काफी ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा आपको। एंड अगेन कैपिटल का रिस्क आप कितना कर रहे हो इस स्ट्रैटेजी को बनाने में। लेट सपोज अगर 75 लॉट साइज नहीं होता निफ्टी का, सपोज 1 ही होता, तब तो आप भी कोई भी कर लेता, तब तो कुछ भी नहीं। लाइक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में प्रॉफिट लॉस काफी कम ही होते हैं, मतलब लाइक ऑब्वियसली यहाँ पे सारा डिफरेंस लॉट साइज की वजह से ही हो जा रहा है। सो वी जस्ट सॉ कि लॉट साइज एक्चुअली में इट इज रियल कैपिटल अगर एम्प्लॉय होती तो उसका लेस देन 1% ही रिस्क पे हो रहा है। सो इट इज वेरी सेफ स्ट्रैटेजी इन रियलिटी। बट द थिंग इज कि आपको करने के लिए ही मिनिमम, अगर जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट का रूल होता है कि लाइक 2% से ज्यादा तो रिस्क नहीं करना है। सो इफ यू वांट टू ट्रेड इन इंडेक्स की एफएनओ स्ट्रेटेजी, तो आपके अकाउंट में मिनिमम 5 लाख रुपए होने चाहिए, या फिर 5 लाख के शेयर्स, एफडी कुछ भी होना चाहिए, जिस 5 लाख की मार्जिन होनी चाहिए। पिछला टॉपिक जो हमने एमटीएफ का जो बेसिक डेफिनेशन मैंने जो बताई थी, एमटीएफ में बेसिकली होता ये है कि आप अपने शेयर्स अगर आप होल्ड किए हो, तो शेयर्स भी अगर आपके पास 5 लाख 8 लाख के हैं, तो सिंपल व्हाट यू कैन डू इज सिंपली यूज दो शेयर्स एज मार्जिन, एंड आप इस तरीके से एफएनओ में हेजिंग करो। सिंपल, एफएनओ में यू आर ट्रेडिंग। दिस वाज अ दिस स्ट्रेटजी इज कॉल्ड पुट हेज स्ट्रेटजी। सो इस स्ट्रेटजी में दिस इज द मोस्ट कॉमन स्ट्रेटजी, जो सबसे ज्यादा मैं बताता हूँ स्टॉक्स के लिए, स्पेशली व्हेन आई एम बुलिश ऑन एनी स्टॉक या कुछ, तो आई गिव यू दिस स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी में मतलब यू कैन, इफ स्टॉक स्टार्ट्स मूवमेंट, मतलब मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है तो बहुत तेजी से मूवमेंट होता है, एंड यू कैन कैप्चर गुड मूवमेंट वेरी इजीली। एंड यू आर हेजिंग योर थिंग, मार्केट में कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा क्रैश आ जाए, आपको कोई टेंशन नहीं लेना, आपको सुकून से बस आप चल रही है कि ओके माई मैक्स लॉसेस आर फिक्स यहाँ पे। सी सेम मतलब अभी तक इसमें लाइक हाउ टू बाय दिस थिंग एंड जो भी रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, इफ एनीबॉडी हैज एनी डाउट, देन यू कैन डेफिनेटली आंसर, मतलब यू कैन डेफिनेटली आस्क दैट क्वेश्चन। somebody ask me like if you have any doubts, आप you can ask, simply ask this question। अगर जो भी अभी till now till how to like risk reward wise क्या है basically ये strategy, you can simply ping on the chat and I'll answer। somebody has a question कि what is my telegram channel link या whatsapp link या कुछ भी, so best is simply I will ping this thing on the chat। okay, so I will share, basically this is simply type this thing on Instagram or Facebook and you can get in touch with us। ठीक है, so like simply type Orchid Research on Instagram or Facebook and you can like join our channels and all, वहां पे link share करती जाएगी। so here like I don't exactly know वो चैनल की लिंक मेरे पास अभी रेडिली अवेलेबल नहीं है। सो सिंपली पिंग फॉलो हियर एंड सिंपली आप इस पे मैसेज करो, यू विल गेट द थिंग। Now, next question is, if we roll over for the next month, do we have to pay 10K as a loss next month move करने के लिए या profit के जो भी? तो yes, if you are rolling over, तो yes, you have to pay 10K as a loss। so अगर किसी के पास 1.5 लाख रुपए अकाउंट में है, तो उसको ये भी देखना है कि अच्छा
अगर ये स्ट्रैटेजी 2 महीने या 3 महीने बाद रिजल्ट देगी तो 2 महीने तक मुझे खर्चा उठाना पड़ेगा, मतलब 10-10 हज़ार रुपये पर मंथ पेमेंट करना पड़ेगा मार्केट को 2 महीने का। सो अगर स्ट्रैटेजी में मिनिमम 1.5 लाख रुपीस लग रहे हैं तो आपको ये 2 महीने का कैलकुलेशन करना है कि यार 10,000 पर मंथ के हिसाब से मेरे पास मिनिमम 1.7 लाख होने चाहिए, तभी भी आई शुड एंटर द स्ट्रैटेजी। सो दिस इज द सी मेन थिंग इज कि अगर आप एफएनओ में काम करते हो तो एफएनओ में मतलब लाइक एनी अदर एडवाइजर विल टेल यू कि 10 लाख से नीचे तो आप सोचिए ही मत। अगर मार्जिन आपके पास 10 लाख से नीचे है देन यू शुड नॉट इवन थिंक ऑफ एफएनओ। बट स्टिल if you have margins of 5 to 6 to 7 lakh, you can do in index future FNO जो हम लोग करते हैं। So yes, that is kind of doable. The thing is, see, यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो आप इस चीज को मिस कर रहे हो कि अगर हम लोग रोल ओवर करना होगा या एवरीथिंग, यहाँ पे हमने मैंडेटरली स्टॉप लॉस लगाया है। लॉस आपका तब होगा जब लॉस हिट करेगा। नाउ एज्यूमिंग कि लॉस स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉस हिट हो भी रहा है, बट स्टिल इफ यू हैव द कैपिटल टू सस्टेन कि हाँ 3 मंथ तक ये स्ट्रेटेजी चलेगी या 2 मंथ तक स्ट्रेटेजी चलेगी, इफ यू हैव द कैपिटल टू सस्टेन, देन मतलब एक्चुअली यू आर नॉट पुटिंग एनीथिंग एक्चुअली एट रिस्क। द थिंग इज कि मतलब ऐसा हो रहा है कि अगर मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो आपको खुश होना चाहिए कि अरे वाह, मार्केट अगर 500 पॉइंट नीचे चले जा रहा है, आप तो आपका तो काम मतलब लाइक एक पॉइंट होगा, 200 या 250 पॉइंट के बाद एक पॉइंट होगा कि उसके नीचे कितना भी जाए मार्केट आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेस्ट वुड बी कि अगर उसके नीचे जा रहा है तो और अच्छा है कि चले जाए, सो दैट रोल ओवर करते टाइम यू कैन इजिली गेट दैट दिस थिंग बैक। फर्स्ट थिंग इज ये। सेकेंडली, ऑब्वियसली अगर मार्केट में सिचुएशन चेंज होती है तो यू ऑब्वियसली एग्जिट आउट ऑफ दिस स्ट्रेटेजी। माय पॉइंट वाज कि मतलब हाउ यू कैन एक्चुअली लाइक बेसिकली प्रॉफिट लॉस को कैसे आप एक्चुअली कवर कर सकते हो। ठीक है। नाउ इफ यू आर आस्किंग बिगिनर्स कैन नॉट स्टार्ट एफएनओ स्ट्रेटेजी, मैं आपको बता रहा हूँ, सी द मोटिव ऑफ दिस वेबिनार इज कि इफ यू आर ट्रेडिंग विथ मी और आपको पैसे, जैसे लोग पूछते थे कि आई हैव दिस मच मनी, मुझे अर्न करना है, तो एम ऑफ दिस वेबिनार है कि मैं जो रिकमेंडेशन भेजता हूँ उसका रिस्क रिवॉर्ड मैंने बताया कि ऐसे है, एंड आपको बाइंग सेलिंग कैसे करनी है वो मैंने बताया। सो इफ यू हैव सम मनी, बिगिनर, बाय बिगिनर आई डेंट गेट योर पॉइंट। कुछ दो चीज हो सकती है। फर्स्ट थिंग कुड बी कि यू आर न्यू टू स्टॉक मार्केट। सेकंड थिंग इज योर कैपिटल इज लो। अगर कैपिटल लो है तब तो नहीं है ये आपके लिए स्ट्रेटेजी, बट इफ योर कैपिटल इज हाई एंड इफ यू आर ट्रेडिंग विथ मी, अगर आपको ऐसे करना है तो मैं स्ट्रेटजीज तो ऑलरेडी शेयर करता हूँ। हाउ टू बाई और सेल दोस थिंग्स, वो उसका चीजें मतलब यू हैव टू आंसर हियर। सो दिस इज हाउ बेसिकली मतलब होता है। सो एनी अदर डाउट्स अगर किसी को है यू कैन सिंपली आस्क, मतलब आई थिंक आई हैव आंसर्ड। एनी अदर क्वेरीज? सो जस्ट अ सेकंड, एनी अदर क्वेरीज विद दिस रिस्क मैनेजमेंट वाइज या जो भी चीजें? द थिंग इज कि कैपिटल आपका ब्लॉक इंस्टेड ऑफ फ्यूचर कैन आई बाय कॉल ऑप्शन एंड रिस्क रिलेटिवली, ऐसा सी। मैं एक चीज बता रहा हूँ कि अगेन यू आर आस्किंग रॉन्ग क्वेश्चंस। इस यहाँ का एम ये है कि वंस यू हैव अंडरस्टूड कि व्हाई वी आर कॉल ऑप्शंस बाय करने के लिए यू कैन डू योर ओन एनालिसिस एंड बाय कॉल ऑप्शंस, जो भी चीज है। द थिंग इज कि इफ यू हैव दिस कैपिटल तो यू शुड गो विथ एफएनओ हेजिंग। व्हाई? बिकॉज मैं मतलब एवरी टाइम आई हैव टोल्ड यू कि एफएनओ हेजिंग में व्हाट इज हैपनिंग कि आप रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे एकदम मतलब लाइक योर मैक्सिमम लॉसेस आर फिक्स एंड प्रॉफिट्स भी आपको मिल रहे हैं। कॉल ऑप्शन में होता क्या है, प्रॉब्लम इज कि कॉल ऑप्शन में मैंने आपको बताया आइडियोलॉजी की, कॉल ऑप्शन में तभी आप अर्न करोगे जब आपके डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। इवन इफ द मार्केट, कॉल ऑप्शन में देर आर थिंग्स कि मतलब डेली प्रॉफिट प्रीमियम ड्रेन होता है, टाइम डे के मल्टीपल थिंग्स होते हैं। यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग कि यू आर यहाँ पे यू आर अर्निंग मोर प्रॉफिट्स। आपका अगर मैक्सिमम लॉसेस जैसे वो लग रहा है कि कॉल ऑप्शन में भी फिक्स होता है, यस ग्राफ इज काइंड ऑफ सिमिलर, बट सी गाइस यू आर आस्किंग इनकरेक्ट वो क्वेश्चंस आपके ये नहीं होने चाहिए कि हाउ टू एनालाइज दिस या कॉल ऑप्शन बाई हो करना है। मेनी पीपल आर आस्किंग हाउ टू गेट माय हाउ टू गेट लॉसेस अगेंस्ट माय सेटल्ड स्टॉक्स। वो सारी चीजें आपको हाउ वगैरह चीज है ही नहीं। आपको अगर स्ट्रेटेजी मिल जा रही है तो आपको बाई कैसे करना है। 1 सेकेंड।
सो अगर आपको बाई सेल कैसे करना है, लाइक दोज थिंग्स वो मैंने आपको बताई, एंड रिस्क रिवॉर्ड क्या एसोसिएटेड है इससे। assuming that you are trading with me and assuming you have 5 lakh corpus and or assuming you want to start trading with me, स्ट्रैटेजी मैं बनाऊंगा, मैंने बताया कि बाई सेल ऐसे करना है, ये रिस्क रिवॉर्ड्स है। इफ एनीबडी हैज एनी अदर डाउट्स तो ठीक है, अदरवाइज वी विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेशन। सपोज 15 पीपल कलेक्टिव, नो गाइस प्लीज, दो ये ऐसी क्वेश्चंस लाइक ये सारी चीजें एक सिंगल इंसान के अकाउंट से होती हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस या जो भी ट्रेडिंग, इफ यू आर ट्रेडिंग विथ मी या कोई भी चीज, एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको कि ट्रेडिंग में आई डू नॉट मैनेज मनी, मैं किसी के पैसे नहीं लेता, फर्स्ट थिंग इज दैट। और सेकंड थिंग इज कि ट्रेडिंग में आपको अपने अकाउंट से ट्रेड करना होता है। मतलब ऐसा नहीं कि आप पैसे दे दोगे या फिर 15 लोग मिलके मुझे पैसे दे देंगे एंड मैं ट्रेड करके आपको प्रॉफिट्स दे दूंगा, वो चीज नहीं होता है। आपको अपने ही अकाउंट से करना होता है, वो स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स हैं, ये डिफरेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन हो गया। दीज आर अगेन गोइंग आउट ऑफ द ये, अगर आपको किसी को कोई ये चीज में डाउट है कि व्हाट इज द रिस्क एसोसिएटेड, रिस्क वाला पॉइंट नहीं समझ आया, ये सब चीजें नहीं समझ में आए, देन लाइक वो सब चीजें यू कैन आस्क मी। हाउ टू मेक द, या कैसे ऑर्डर लगाना है, ये चीज भी मैंने बताया कि पहले फ्यूचर बाई करना है एंड देन ऑप्शन बाई करना है। एनीथिंग एल्स रिलेटेड टू कैसे पैसे कमाने, सिंपली मेरे रिकमेंडेशन पे, मैंने जो इतने बड़े रिकमेंडेशन व्हिच आई सेंड रिगार्डिंग दिस एफएनओ हेजिंग, वो उसके ऊपर वो समझ नहीं आ रहा उसमें क्या है, दोनों बाई क्यों करते हैं, ये सारी चीजों के बारे में मैंने बताया। अगर उससे रिलेटेड एनी डाउट्स है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज नेक्स्ट सेशन के लिए वी विल प्रोसीड। ठीक है, अगर कोई और क्वेरीज है तो यू कैन सिंपली डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक या जहां से भी आपने ये रजिस्टर किया है। अदरवाइज आफ्टर दिस सेशन you will get a personal link to share your feedbacks and all, उस लिंक पे just write your queries on mail, मैं आपको शेयर कर दूंगा लिंक टू ज्वाइन चैनल एंड ऑल, जो भी चीजें हैं, those things are not relevant here, okay? So ये चीजें हैं। now see, I wanted to discuss two more strategies but काफी टाइम ऑलरेडी इसमें ही हो गया, तो आई वो द थिंग इज कि लाइक इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग दो वो स्ट्रेटेजीज, आई थिंक अभी तक सबको ये समझ में आ गया कि लाइक जो भी मैं रिकमेंडेशन भेजता हूँ, मतलब बेसिकली उनका मीनिंग क्या है, कैपिटल कितना रिक्वायरमेंट होगी, ब्लॉक्ड मार्जिन यस सिर्फ कम होता है, बट यस इन ऑर्डर टू स्टार्ट आपके पास मार्जिन होनी चाहिए। थर्ड थिंग ये मैंने ये इंडेक्स का बताया, स्टॉक्स में बेसिकली ये सेम चीज जो 1.6 लाख था, स्टॉक्स में लेट्स ट्राई ना, कोई भी स्टॉक का देख लेते हैं, जैसे टाटा केमिकल्स का देखते हैं। यू विल सिंपली फाइंड कि मतलब उसका फ्यूचर ही बाय करने में ही यू विल नीड लाइक गुड अमाउंट ऑफ मनी। सो इसके लिए अच्छा ओके, सो दिस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए 1.82 लाख लग रहा है, देयर आर सर्टेन स्टॉक्स जिसमें 3-4 लाख भी लगते हैं, सो इट डिपेंड्स। तो इसके लिए ही यू बेस, माय मेन पॉइंट इज कि रिस्क मैनेजमेंट मॉडल के हिसाब से यू हैव टू हैव एटलीस्ट 5 लाख का मार्जिन, एज शेयर्स, एज एफडी, एज गोल्ड, व्हाटएवर, यू हैव टू हैव इतना, मतलब इतने यू नीड टू हैव इतने अमाउंट का मार्जिन, ओके? Okay, so can you show me a demo based on yesterday's recommend to buy or sell FNO? See, can we reduce the risk further by buying close to expiry? I don't understand. Like this was the closest expiry which I told, right? मैंने मतलब latest expiry ही ली थी, guys. I think so. Here, there is a question that can we reduce the risk by buying closer to the expiry? So all these strategies generally क्लोजर जो भी एडवाइजर है वो ये चीज देख के ही कर रहा होता है, एंड यूजुअली लाइक यू विल फाइंड कि सारी स्ट्रेटेजीज एक्सपायरी वाला ही जो लेटेस्ट एक्सपायरी चल रही होती है उस पे ही दी जाती हैं सारी स्ट्रेटेजीज। सो लाइक इन केस ऑफ स्टॉक्स मंथली एक्सपायरी ही होती है, इन केस ऑफ इंडेक्स वीकली एक्सपायरी भी होती है। सो लाइक मैंने एक एग्जांपल बस बेसिकली दे दिया। द मेन पॉइंट है कि आप फ्यूचर्स में वीकली एक्सपायरी तो होती नहीं, ऑप्शंस में ही होती है mainly. So what index के options में, so what happens कि ये like obviously mainly all these strategies are done on latest expiry only, so that you earn most and then बाकी का चीज आप बाद में कर लो। worst cases में you have to roll over, मतलब yes sometimes you roll over, sometimes you book loss and exit, हमेशा roll over नहीं होता है। so वो सारे केसेस मैंने बताया कि इवन इन वर्स्ट केस होता क्या है। सो कल के कल का डेमो के हिसाब से लाइक व्हाट हैपेंड वाज वोल्टास का था शायद, वोल्टास का फ्यूचर्स था। सो लेट्स सपोज इफ समबडी बाइज वोल्टास का फ्यूचर था कितने पे, लाइक 130
के आसपास पे somebody बेसिकली उसको बाई करने के लिए, वोल्टास के फ्यूचर को बाई करने के लिए 1.21 लाख चाह रहा था, एंड इट वाज बाई बॉट समवेयर अराउंड 1130 और 1030 समथिंग, लेट्स सपोज मार्केट प्राइस जो है अभी करेंटली, ठीक है, डज नॉट मैटर। तो वोल्टास का ये फ्यूचर था, आफ्टर फ्यूचर्स ट्रेड वाज बॉट, जब वो बाई हो गया उसके बाद हमें ऑप्शन बाई करना होता है, स्टॉप लॉस तब लगाना होता है। सो उसके बाद हमने ऑप्शन बाई किया था 1040 का, समथिंग सम प्राइस में बाई किया था, इग्नोर द प्राइस। सो बेसिकली दिस वुड हैव बीन द पीएनएल। ये ब्लू लाइन जो है ये प्रॉफिट लॉस का ग्राफ होती, एंड ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, जिस दिन जैसे बेसिकली प्रीमियम डे होता है ना, तो हर दिन ये ब्लू लाइन यू विल फाइंड कि ये ब्लू लाइन एट द एंड एक्सपायरी वाले दिन ब्राउन से मर्ज कर जा रही है। सो आई हैव बेसिकली मैंने एज केस लेके ही पिछला वाला समझाया था। सो हमारे इस केस में, वोल्टास के केस में, हमने मतलब लाइक 30-40 पॉइंट्स का मूवमेंट कैप्चर किया था। सो लेट्स सपोज अगर यहाँ पे हम 40 पॉइंट्स का मूवमेंट कैप्चर करते हैं, तो जस्ट इमेजिन द प्रॉफिट। अच्छा, आई थिंक द प्राइस वाज समवेयर डिफरेंट ना, वी बॉट, वन सेकेंड, just a second, we bought some this around 27, okay, and we bought this around 1030। सो अभी के हिसाब से, या सो यस दिस वाज द प्रॉफिट, यस बेसिकली यही चीज था। 27 पे फ्यूचर्स बाई था, 27 पे ये, एंड फ्यूचर्स वाज बॉट एट 1030 बेसिकली। तो वही 60K का रफली जो प्रॉफिट आया था, दिस वुड हैव बीन द प्रॉफिट। सो जब एनालिसिस हुई थी उस टाइम पे, मतलब सी लुक एट दिस, कि हाँ मतलब प्रॉफिट लॉस का ग्राफ ये चीज है। सो दिस वुड हैव बीन द प्रॉफिट व्हेन दिस वाज एनालाइज्ड। रिस्क वाइज सी बेसिकली द थिंग इज कि हमने ऑलरेडी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में बेसिकली, जब मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का एक्चुअली डीप डिस्कशन करूंगा या वहां पे स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि हाउ टू एनालाइज, वहां पे वी विल एनालाइज डिटेल्स में। अभी द सेशन वाज मेनली सो दैट कैसे एमटीएफ ट्रेडिंग होती क्या है, हाउ टू लाइक बेसिकली किसी को भी कैश से ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, लाइक ओनली एमेच्योर्स ट्रेड विद कैश। आपको हमेशा व्हाट यू हैव टू डू इज आपको किसी एसेट में कन्वर्ट करना चाहिए कैश को, सो दैट इट इज ग्रोइंग, स्टॉक्स में, अब एफडी, बॉन्ड, गोल्ड, एनीथिंग। ऑब्वियसली एफडी तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, अज्यूमिंग कि अगर आपको बिल्कुल नहीं आता तो। सो लेट्स अज्यूम कि आपने शेयर्स में कन्वर्ट किया है उस कैश को, तो शेयर्स तो बढ़ ही रहा है, शेयर का पैसा बढ़ रहा है, आपने शेयर की मार्जिन से फ्री में ये वर्चुअल ट्रेडिंग की है। सो दिस इज व्हाट इज मार्जिन एमटीएफ, एंड आपने हेजिंग की है। एंड द थिंग इज कि सी अगर एक महीने बाद आप देखते हो ना, कई टाइम्स में, केसेस में क्या होगा कि अगर लेट सपोज मार्केट इज ग्रोइंग, लेट सपोज अगर आपने अच्छा पोर्टफोलियो बनाया, तो पोर्टफोलियो ऑलरेडी आपको 20-30 हजार रुपए बढ़ गया रहेगा महीने के एंड में। एंड इवन इन केस ऑफ लॉसेस, जब ये लॉस हो रहा है बेसिकली रोल ओवर करने में, या लेट सपोज स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है, सो इवन इन केस ऑफ मैक्स लॉसेस, पोर्टफोलियो ने पैसिव इनकम ऑलरेडी आपको इससे ज्यादा ही दे दी होगी। अगर आपका पोर्टफोलियो 5-6 लाख प्लस है, तो योर पोर्टफोलियो विल गिव यू दिस मच इनकम डेफिनेटली, एंड साइड में यहाँ से तो इनकम आ ही रही है। सो दिस इज लाइक बहुत ही लाइक, इफ यू गो इन द, मतलब जो भी मेरी पास की स्ट्रेटेजी जो भी रही है, अगर इफ यू लुक एट ऑल द स्ट्रेटेजी सारे चीजों का, तो एट द एंड व्हाट वुड हैव हैपेंड कि मतलब एट द एंड होता है कि 2-4 हजार रुपए का प्रॉफिट लॉस होता है महीने के एंड में, या फिर ड्रास्टिक प्रॉफिट होता है, नथिंग एल्स, कुछ और होता ही नहीं है। मतलब या तो एकदम ड्रास्टिक प्रॉफिट होता है या फिर 2-4 हजार का। सो इफ यू हैव 10 लाख का कॉर्पस या 5 लाख का कॉर्पस, ऐसे ऐसे करके अगर 3-4 स्ट्रेटेजीज इफ यू डू, 4-5 स्ट्रेटेजी बना दिया, महीने में हो रहा है, सो व्हाट विल हैपन कि बाकी सब में से 2-4 हजार थोड़ा थोड़ा कम जाएगा, लेकिन द प्रॉफिट्स व्हेन दे आर कमिंग, दीज आर ह्यूज। तो इन दिस वे बेसिकली एक्चुअली आप इतना ज्यादा रिस्क लगा ही नहीं रहे हो कभी भी। गेटिंग दिस पॉइंट? if anybody has any doubt in this point, तो you can ask, मतलब basically ये ऐसा ही है। So like if everything is fine, then we can proceed with the next part, which is global investment. And we will cover basically global investment. Maybe I'll share you my portfolio ideas and market outlook थोड़ा बहुत। So like basically see, the thing is कि if you have 5-6 lakh corpus, and assuming that you will go with some of my plans, you are trading with me, ये दोनों चीज अज्यूम करने के बाद ही मैंने ये पूरा एमटीएफ ट्रेडिंग का ये किया कि दिस विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन यू हैव एनालिसिस, एंड सारी चीजें हो रही हैं उनसे करके पैसे कैसे कमाने, ये सब चीज मैंने बताया। तो इफ यू हैव एनी डाउट्स वी कैन प्रोसीड, अदरवाइज जस्ट सिंपली पिंग ऑन द चैट एंड देन आई विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट part of the session. So next part of the session is basically global investments.
I hope the screen is visible to everyone. Uh, yeah. So okay, my एक part which I actually forgot to inform you all. Let me मैं like with me there are basically two brokerage firms, ICICI and IIFL. मैं दोनों में differences बता देता हूँ basic कि क्या है दोनों में brokerage charges and MTF में differences बताता हूँ. So ICICI में what happens is कि मार्जिन जो भी लेट्स सपोज व्हेन यू हैव क्रिएट मार्जिन पे जो भी आप ट्रेड कर रहे हो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में देयर इज जीरो, क्या कहते हैं, लाइक जीरो इंटरेस्ट, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा. बट इफ द थिंग इज कि जो भी शेयर्स आपने बाई किए हैं आईसीआईसीआई में, दैट इज नॉट जीरो डिलीवरी. मतलब आपको बाई करते टाइम ब्रोकरेज पे करना होता है 0.55% ऑफ द ट्रेडेड अमाउंट. 0.55% पे करना होता है फ्लैट. अगर आप किसी ब्रोकरेज प्लान के साथ जाते हो, देर आर वेरियस ब्रोकरेज प्लान, तो दैट कैन बी रिड्यूस्ड अप टू 0.15% ऑफ द ट्रेडेड अमाउंट. तो बेसिकली 1 लाख रुपीज पे 150 रुपए तक का ब्रोकरेज रिड्यूस कर सकते हो कि 1 लाख रुपीज के आपने टोटल बाइंग की, तो 150 रुपए का आप ब्रोकरेज दे रहे हो बेसिकली, रफली इतना. इससे कम नहीं दे सकते. और अगर आप कोई ब्रोकरेज प्लान नहीं लेते हो तो बेसिकली 550 रुपए तक ब्रोकरेज दोगे. दैट थिंग इज फ्री इन आईएफएल. आईएफएल में डिलीवरी इज फ्री. ठीक है. नाउ सेकंड थिंग इज, मतलब आईसीआईसी में आफ्टर ऑल द प्लान्स अगर आप डिलीवरी में कर रहे हो, बीटीएसटी ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, तो यू विल हैव टू पे ब्रोकरेज, चाहे कुछ भी हो जाए. इफ यू आर डूइंग इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग, तो फ्यूचर्स में जीरो, और बाकी अगर इंट्राडे कैश में अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो 20 रुपीज, जस्ट लाइक जीरो था, फ्लैट पर ऑर्डर. ये चीज है. दिस इज द ब्रोकरेज प्लान इन आईसीआईसीआई. इन आईएएफएल द सेम थिंग इज कि मतलब लाइक स्विंग ट्रेडिंग, बीटीएसटी ट्रेडिंग, ये सारी चीज फ्लैट जीरो है, डिलीवरी इज फ्लैट जीरो. बट ब्रोक फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग बेसिकली मतलब आईसीआईसी की तरह ही सेम चार्जेस हैं इंट्राडे के. द थिंग इज, एंड फ्यूचर्स और ऑप्शंस में 20 रुपीज पर ऑर्डर फ्लैट. आईसीआईसी में फ्यूचर्स में जीरो है, सो यहाँ पे 20 रुपीज है. ये चीज है. अब मैं इंटरेस्ट की बात करता हूँ. आईसीआईसी में देखो मार्जिन देखिए दो टाइप की होती है. फर्स्ट इज मार्जिन लेके आप क्या कर रहे हो. मार्जिन लेके आप कैश में स्टॉक्स बाई कर रहे हो या फिर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में. आईसीआईसी में होता है कि मार्जिन लेके आप कैश में बाई कर लो स्टॉक्स. जैसे मैं अभी जो पास्ट में ऐसे स्टॉक्स बताता हूँ ना, बाई आईसीआईसी बैंक एज लॉन्ग एज इट इज बिलो, जो मैं रिकमेंडेशंस देता हूँ, जैसे आईसीआईसी बैंक में आपने प्रॉफिट किया होगा, उसके पास्ट में लुपिन एंड सन फार्मा थे, उसके पहले गोदरेज प्रॉपर्टीज था. जो भी स्टॉक्स, जैसे वो जब कोई भी स्टॉक बुल मार्केट में महीने में 20% 25% का रिटर्न देने वाला है एंड आपके पास पैसे नहीं है, तो यू कैन गो विद टू थिंग्स. फर्स्ट इज आप एफएनओ हेजिंग में कर सकते हो चीज की, सॉरी, आप अगर पोर्टफोलियो बनाए हो तो एफएनओ में कर सकते हो, वहां पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा. अगर आप सेम चीज को कैश में करते हो कि भाई पोर्टफोलियो मेरा बना रहे हैं एंड पोर्टफोलियो से मुझे मार्जिन मिल जाए शॉर्ट टर्म में, 1 महीने 2 महीने के लिए मैं कुछ स्टॉक लेता हूँ जिसमें 15-20% रिटर्न मैं आई कर रहा हूँ, सो व्हाट हैपेंस, वहां पे इंटरेस्ट लगता है डिपेंडिंग ऑन योर ब्रोकरेज प्लान. लेट्स अज्यूम ये जो लाइक लोएस्ट इंटरेस्ट रेट जो है वो है 8.3% पर एनम. तो मैं आपको बताता हूँ बेसिकली कॉस्ट वाइज होता क्या है. कॉस्ट वाइज होता ये है कि लेट सपोज आपने 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो बनाया एंड आपने प्लेज कर दिया वो, एंड लेट सपोज आपने यूज कर रहे हैं आप, लेट सपोज आपने आईसीआईसी बैंक बाई कर लिया एंड 1 लाख रुपीज का बाई कर लिया. सो इस 1 लाख रुपीज पे जिस भी दिन बाई किया डेली आपका कैलकुलेट होते रहेगा जितने डेज पे तक आपने रखा है, उतने डेज का 8% पर एनम के हिसाब से उतने डेज का चार्जेस लग जाएगा. सो लेट सपोज आपने 1 महीने रखा है, लेट सपोज 1.5 मंथ्स, लेट सपोज इजी कैलकुलेशन के लिए रखते हैं, 1.5 मंथ्स रखते हैं. तो 1.5 मंथ रफली क्या होता है, 12 मंथ में 8%, 8.3% लग रहा है, तो 1.5 मंथ में रफली 1% लगेगा. तो आपने अगर सपोज 1 लाख रुपए की ट्रेडिंग की 1.5 मंथ तक, तो बेसिकली आपने इंटरेस्ट के फॉर्म में 1,000 रुपए दिया होगा एज टू आईसीआईसीआई. अब लेट सपोज स्टॉक, अगर आपको ऑब्वियसली ये चीज तभी आपको यूज करना है जब आपको दिख रहा है कि हाँ ये स्टॉक बढ़ने वाला है, ऐसी रिकमेंडेशन पे ट्रेड करना है यूजिंग मार्जिन, आपको दिख रहा है कि हाँ स्टॉक आपको 10-15% रिटर्न दे रहा है. तो अगर 15% रिटर्न देने के लिए कोई आपको फ्री में मार्जिन दे रहा है, तो यस थोड़ा इंटरेस्ट देना बनता है, तो यू कैन गिव इंटरेस्ट इस तरीके से. सेम चीज इन आईएफएल भी है. सेम चीज आईएफएल में भी लाइक यू कैन डू, वहां पे भी सेम इंटरेस्ट रेट ही है एमटीएफ का इन कैश. एमटीएफ इन फ्यूचर्स और ऑप्शंस आईसीआईसीआई में फ्री हैं, बट आईएफएल में अगेन जितने अमाउंट का आप लेते हो मार्जिन, उतने अमाउंट पे बेसिकली व्हाट हैपेंस की यू वोंट पे एनी इंटरेस्ट ऑन वो जो भी पोजीशन है,
बट द थिंग इज, जो भी मतलब बाइक सेल पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं दोगे, बट द थिंग इज कि लेट सपोज आज सपोज आपने कुछ बाई किया है फ्यूचर्स एट 1600, सपोज कल वो 1590 पे होता है, तो 10 रुपए का जो मूवमेंट जो नेगेटिव आया है, वो 10 रुपए क्या होता है बेसिकली कि फ्यूचर्स में डेली सेटलमेंट होता है। तो लेट सपोज लॉट साइज इज 1000, तो 10,000 रुपए का बेसिकली आपने आज के दिन में आपका लॉस हो रहा है बेसिकली। तो इस 10,000 रुपए जो ये अमाउंट हो रहा है, इस अमाउंट पे वहां पे इंटरेस्ट लगता है बस। सो इट इज लाइक जीरो ओनली एट द एंड। यहाँ पे अगर आप देखोगे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, तो एट द एंड आफ्टर द ट्रेड आप देखोगे कि 20-25 रुपए एक्स्ट्रा आपने दिए होंगे, या 50 रुपए तक इंटरेस्ट, अप टू 4-5 लाख की ट्रेडिंग में। इससे ज्यादा आपने नहीं दिया होगा, अज्यूमिंग 1 वीक में कट रही है पोजीशन। तो बेसिकली ये डिफरेंस अमाउंट का जितना नीचे जा रहा है, आपने जितने पे बाई किया उससे नीचे जितना फ्यूचर जा रहा है, उस अमाउंट का पे इंटरेस्ट लगता है। ये चीज मतलब जो भी लॉस का अमाउंट हो रहा है आपका बेसिकली 10,000 का, 5,000 का, जो भी। नाउ मैक्सिमम लॉसेस आपके फिक्स होते हैं, मैक्सिमम लॉसेस आपके 10,000 मैंने बताए, या किसी स्ट्रेटेजी में 20,000, या जो भी वट एवर बी द अमाउंट। तो लेट्स अज्यूम कि मैक्सिमम लॉस पे चला गया, तो आपका इंटरेस्ट सिर्फ उतने अमाउंट पे लगने वाला है। सो ये चीज होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, आईसीआईसीआई एंड आईएफएल में। द डिफरेंस इज, गेम चेंजिंग जो डिफरेंस है वो है इंटरेस्ट का रेट। इंटरेस्ट रेट इन आईएफएल इज मोर देन दैट इन आईसीआईसीआई, बट आईसीआईसीआई में डिलीवरी ब्रोकरेज लगता है। तो अगेन ये चीज यू कैन मतलब आप देख लो वेयर टू, इट डिपेंड्स ऑन योर कैपिटल एंड एवरीथिंग। अगर आपका 7-8 लाख से ऊपर होने जा रहा है कैपिटल, गो विथ आईसीआईसीआई आंख बंद करके। एट द एंड इट विल बी चीपर एंड बेटर, आपको ज्यादा प्रॉफिट्स मिल जाएंगे। इफ यू आर अप टू मतलब 5-6 लाख तक अगर आप हो रहे हैं, देन आईआईएफएल से कर सकते हैं। इवन इफ यू आर गोइंग मतलब ज्यादा अमाउंट पे भी जा रहे हो, लेट्स सपोज 10-20-30 लाख पे भी जा रहे हो, देन ऑल्सो मतलब बोथ आर काइंड ऑफ कंपेरेबल। बट वही चीज है कि वहां पे आईएफएल में, सॉरी आईसीसी में, यू विल पे डिलीवरी ब्रोकरेज। सिंपल, बाई करते टाइम यू विल पे बीटीएसटी या स्विंग ट्रेडिंग करते टाइम आपको ब्रोकरेज पे करना होगा डिलीवरी का 0.15% यूजिंग प्लान, वरना अलग। सो ये एक बेसिक डिफरेंस था। अब हाउ टू एक्सेस दीज थिंग्स का जो चीज है, यू कैन सिंपली, इफ यू आर होल्डिंग एन आईएफएल अकाउंट, बेस्ट इज कि कस्टमर केयर को आप मेल कर दो। वैसे तो फीचर्स अवेलेबल हैं, like you can simply go to their YouTube चैनल या गूगल पे लिख सकते हैं कि हाउ टू प्लेज शेयर्स इन आईएफएल, ऐसे करके सिंपल ये आप कर सकते हो। अदरवाइज राइट टू cs@iifl.com ईमेल आईडी है। सिमिलरली इन केस ऑफ आईसीआईसीआई, द थिंग इज कि मतलब एकदम सामने ही दिख जाता है एकदम फीचर ये, अगेन बिकॉज दे आर मेंट फॉर, बेसिकली आईसीआईसीआई में लोग मार्जिन ट्रेडिंग ही करते ही हैं। एक्चुअली इट इज नॉट द ब्रोकर फॉर और बाकी की चीजों के लिए, ओनली मार्जिन ट्रेडिंग ही लोग करते हैं। तो यहाँ पे एकदम सामने सामने ही मार्जिन का एक सिंपल सा देयर इज अ टैब। इनफैक्ट इन आईएफएल आल्सो इफ यू गूगल ना कि हाउ टू प्लेज शेयर्स इन मार्जिन एज ऐसे करके, तो ऑन वेबसाइट ओनली देयर इज अ लिंक। बेसिकली उनका यूआई हैज बीन चेंज्ड रिसेंटली, तो आई एम नॉट एबल टू रिकॉल कैसे है। यू कैन राइट टू कस्टमर केयर या यू कैन डीएम मी आल्सो, आई विल आल्सो राइट, तो वो हेल्प हो जाएगी। एकदम सिंपल है, इट इज वेरी इजी प्रोसेस। सो द थिंग इज कि मतलब यू शुड, मतलब मेरे हिसाब से यू शुड यूज मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। ऑलवेज प्लेज योर शेयर्स एंड प्लेज। अगर आप नहीं सी, अगर आपके अकाउंट में कैश है तब तो ठीक है, कैश नहीं है बाकी अमाउंट से यू कैन यूज। बिकॉज एट द एंड अगर इफ एडवाइजर इज गिविंग यू अच्छे रिटर्न्स मंथली वाले, 1 मंथ की होल्डिंग, 2 मंथ की होल्डिंग पे, इफ एडवाइजर इज गिविंग यू रिटर्न्स एंड आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का वो डर लग रहा है लाइक लॉस से, तो यू कैन गो विथ एमटीएफ बाइंग, मतलब होल्डिंग वाली बाइंग। ये चीज से ऑल्सो यू कैन अर्न, बट द थिंग इज कि ओनली इफ यू पुट मोर कॉर्पस, तभी क्या होता है कि मतलब आपको एक्चुअली प्रॉफिट्स दिखेंगे, वरना आप ये इंटरेस्ट ऑल, बेसिकली एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से ऊपर आना होता है इसमें प्रॉफिट कमाने के लिए। एनी अदर क्वेरीज गाइस? Otherwise, we'll proceed with global investments. So global investments, basically, I'll show you ki what are global investments, how to basically invest global investment, how to do with us. See, before we start this thing, ekdam flat disclaimer hai. If you ask me ki can we do with Grow app, can we do with IND money or anything? So as per Bombay Stock Exchange license, I am not allowed to give any advice there. If you are opening an account anywhere else for global investments, I will not be able to give you even a single piece of advice. मतलब मैक्सिमम आपके पैसे निकालने, टैक्सेशन एंड ऑल ये सब चीजों के बारे में बता सकता हूँ, बट वेदर द स्टॉक इज गुड और बैड, आई कैन नॉट एडवाइज दैट थिंग लीगली, दैट इज लाइक फिक्स. So if you are interested in global investments,
we have partnered with Bombay Stock Exchange, which has basically, or there is another company. So we like unke sath milke what we have done is we have opened an account with our international broker in US, Drive Wealth LLC, and there like all the custodian or all those things is Drive Wealth LLC, and the guarantor here is BAC. So iske through we are doing. Now global investments karna क्यों है? So global investments is basically, it is in order to achieve some robustness in your portfolio. Overall करना ही इसलिए है कि अगर इंडिया में मार्केट, जैसे अभी इंडिया में मार्केट क्रैश, मोस्टली इफ थिंग्स आर वेल इनफ, तो मे बी देयर मस्ट बी सम, देयर विल बी सम नेगेटिविटी इन द कमिंग मंथ्स, जून जुलाई में आएगा, बट मार्केट्स अक्रॉस द ग्लोब काफी अच्छे चल रहे होंगे, markets across the globe, because US में काफी, there are different reasons which we'll discuss in this webinar. तो होता ये है कि मतलब you can invest and achieve like diversify your portfolio globally. There are many ways. uh, this is like first time actually मैं बता रहा हूँ, there is no other platform in India जिनके साथ हमने टाई अप करके हम कर रहे हैं, there is no other platform जो इस तरीके का पोर्टफोलियो एडवाइजरी, बेसिकली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज देता हो. दिस इज अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, दिस इज नॉट अ ब्रोकिंग थिंग और कोई भी चीज. So this is like basically global investments with us is the only portfolio management services which is existing in the market. As of now, there is no other PMS available. So हमें बेसिकली करना क्यों है? पर्पस ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इज, फर्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड बेसिकली रिस्क, जो मैंने अभी बताया डाइवर्सिफाई करने के लिए, एंड सेकेंड इज टू आइडेंटिफाई यूनिक अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस द ग्लोब. जैसे आप टेस्ला मोटर्स में इन्वेस्ट करना है, गूगल है, इट इज चेंजिंग द गेम. अब अगर वहां इन्वेस्ट करना है तो ऑब्वियसली लाइक आप इंडिया में रह के कर तो पाओगे नहीं, आपको करना ही पड़ेगा, उस कंपनी का शेयर खरीदना ही है अगर आपको उस तरह से ग्रोथ चाहिए तो. सो लाइक सम कंपनीज आर यूनिक जो कि इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, सम बिजनेस मॉडल्स आर यूनिक. So achieve those, in order to target those unique things, you basically have to go with global investments. The thing is कि all these all the portfolios जो भी हम लोग यहाँ पे बनाए, those are again like mine, and I have done some research with people. So सारे चीजों में I have clear, I everything I have constant watch कि हाँ क्या आप लोग पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हो रहा है, जो भी चीजें, just like our momentum portfolio या value investing portfolio जो भी है, it is exactly like that, simple. बट यहाँ पे क्या है कि इंडिया में ड्यू टू रेगुलेशंस, मतलब बहुत ढेर सारे रूल्स हैं सेबी के, उसके वजह से लाइक आई डोंट गेट राइट्स फॉर एग्जीक्यूशन. बट ग्लोबल में आई गेट राइट्स जस्ट बिकॉज ऐसी इंडियन गवर्नमेंट का यूएस गवर्नमेंट के साथ ऐसा ही टाई अप है कि लाइक एडवाइजर्स कैन एग्जीक्यूट ट्रांजैक्शंस. So like here full fledged you will just have to deposit the money and you have to just decide कि क्या करना है. Everything, all the investments are done automatically from our end, everything. सो मेन पर्पस हमारा ये है डाइवर्सिफिकेशन और यूनिक अपॉर्चुनिटीज को अचीव करने के लिए मेनली. ठीक है, विल डिस्कस डाइवर्सिफिकेशन की मेन डेफिनेशन मैं बताता हूँ. एक लेट्स स्टडी फ्रॉम दिस ग्राफ. पिछले 10 साल का अगर हम लोग देखा जाए तो मेजर मार्केट्स जो हैं, मेजर ग्लोबल मार्केट्स हैं, उनमें लेट्स लुक एट मतलब लाइक क्या परफॉर्मेंस रहा है. सो यू कैन क्लियरली सी, मतलब हमने 5 मार्केट्स बेसिकली लिया है. यूएस का मार्केट, यूरोप का मार्केट, इंडिया का मार्केट, चाइना एंड जापान मार्केट. जापान बेसिकली, चाइना में हांगकांग, चाइना, ताइवान, ऑल दोज आर इंक्लूडेड, एंड जापान का मार्केट एंड यूरोप, यूएस एंड इंडियन. सो इन पांचों के एनालिसिस करते हैं तो इट इज वेरी क्लियर. आप देख रहे हो कि इट इज एब्सोल्युटली क्लियर कि टॉप 2 में यूएस का मार्केट, मतलब लाइक सिर्फ बेसिकली लाइक सिर्फ 2 साल ऐसे रहे, 2012 एंड 2017. 2012 when the .com bubble was there, और 2017, ये दो केसेस में मेनली यूएस का मार्केट टॉप 2 में नहीं रहा है, वरना यूएस का मार्केट इस इन टॉप 2 हर टाइम्स में. अगर 10 साल में टॉप की बात कर ली जाए तो 10 साल में 6 बार, 60% ऑफ द टाइम्स यूएस मार्केट हैज बीटन एवरी अदर मार्केट, एंड मोर देन 80% टाइम्स यूएस मार्केट हैज बीन इन टॉप 2. अब अगर इंडिया मार्केट की बात की जाए तो इंडिया मार्केट, बेसिकली इंडियन मार्केट टॉप 2 में सिर्फ 40% टाइम्स रहा है. सो इट इज लाइक वे बिलो दैन ग्लोबल मार्केट्स, काफी ज्यादा, मतलब लाइक यूएस के मार्केट का हाफ से भी बेकार परफॉर्मेंस है. नाउ अगर हम लोग लाइक यूएसडी आईएनआर का रेट लेते हुए ओवरऑल अगर हम लोग कैलकुलेशन ओवरऑल देखते हैं कि कितना रिटर्न्स आ रहा है, तो ओवरऑल जस्ट लुक एट दिस, ओवरऑल इफेक्टिव रिटर्न्स यूएस मार्केट ने कितनी हाई लेवल पे, मतलब लाइक बेसिकली
इफ यू लुक इनटू द रिटर्न, सो रिटर्न के परसेंटेज, कैगर रिटर्न्स अगर 10 ईयर की हम लोग देखी जाए, तो 10 ईयर की कैगर रिटर्न्स यहाँ पे ही हम लोग देखते हैं कि कैसा रहा है। सो इंडिया में 10 ईयर की, लास्ट 10 ईयर की कैगर रिटर्न्स है इंडियन रुपीस के कंपैरिजन में, इंडियन रुपीस में 8.6% की। और अगर यूएसडी और आईएनआर को, डॉलर को भी इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए, डॉलर को इनकॉर्पोरेट करना मतलब वो सारी कंपनीज, पेट्रोल एंड ऑल, जो भी डॉलर से लिंक्ड है, पेट्रोल क्रूड ऑयल वाली कंपनी जितनी भी हैं, वो सारे जगहों के चीजों के प्राइसेस बढ़ गए हैं। सो इफेक्टिवली अगर यूएसडी आईएनआर के रेट को भी देखा जाए, तो इफेक्टिवली सिर्फ इतने का ग्रोथ मिला है पर ईयर, इंडियन मार्केट ने दिया है लास्ट 10 ईयर्स में। यूरोपियन मार्केट हैज गिवन दिस। लुक एट यूएस मार्केट, इतने हाई लेवल का ग्रोथ दिया है। सो मतलब दिस इज द मेन, लाइक डाइवर्सिफिकेशन इज एक्चुअली ऑब्वियस, क्लियर दिख रहा है कि पहली चीज तो हमें दिख रहा है कि कोई भी ऐसा मार्केट नहीं है जो क्लियर कट लीडर है। कभी इंडिया, कभी चाइना, कभी जापान, कभी यूएस, सारे मार्केट्स आए हैं इसमें, तो क्लियर कट लीडर नहीं है कोई मार्केट। सेकंड इज यूएस मार्केट का मैंने स्पेशली, लाइक फर्स्ट वी आर टारगेटिंग यूएस एंड देन स्लोली मैं अभी आई एम वर्किंग ऑन पोर्टफोलियोज इन यूरोपियन एज वेल एज चाइनीज मार्केट्स, एंड देन वी विल टारगेट जापान मार्केट। सो मेनली जापान एंड साउथ कोरिया एक साथ ही वी विल टारगेट। सो ऐसा ही चीज है, व्हाई आई हैव सेलेक्टेड यूएस मार्केट मेनली जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन। सो डाइवर्सिफिकेशन नाउ, लेट अस लुक एट, मतलब सिंस लास्ट 1957 से हम लोग यूएस मार्केट को देखते हैं। 1957 में मतलब ऐसा है कि कई लोग आजाद भी नहीं, सॉरी पैदा भी नहीं हुए थे, एंड लाइक इवन इट वाज जस्ट 10 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। उस समय से हम लोग देखते हैं यूएस मार्केट को। तो यूएस मार्केट का क्या रहा है, मतलब बुल एंड बेयर फेजेस ऑफ द मार्केट। सी, ऊपर ऊपर से मैं बताता हूँ कि जब मार्केट बढ़ा है तो काफी अच्छी रैली किया है, जब मार्केट जब भी बेरिश फेज में है बहुत छोटा, हमेशा लाइक डेकेड्स वाइज जब भी बेरिश, ये बुल एंड बेयर फेजेस ऑफ द मार्केट हैं। तो बुलिश फेज में जब भी रहा है काफी ज्यादा ग्रोथ हुआ है, 582%, 400 का कैगर। एंड व्हेन इट हैज बीन इन बेरिश फेज काफी कम आया है। बेरिश फेज में मैक्सिमम लॉस जब वो चल रहा था, तो हो सकता है हाँ ठीक है, अगले 8 से 9 महीने के लिए मार्केट डाउन चल रहा है, एक साल के लिए डाउन चल रहा है, तो इतना डाउन आया। तो मैक्सिमम एवरेज मतलब डाउन अगर देखा जाए, तो एवरेज डाउनफॉल वाज जस्ट 34.3%, वाइल बुल मार्केट में average returns is 160.8%. Second thing is time period. एवरेज बुल मार्केट 4.8 ईयर्स, मतलब 5 साल के आसपास आसपास तक रहा है, मतलब 5 साल तक बढ़ ही रहा है ओवरऑल नेट मार्केट। एंड एवरेज बेयर मार्केट, मतलब नेगेटिविटी मार्केट में सिर्फ 10-15 महीने, 11 महीने ही रही है, ज्यादा नहीं। सो अगर मार्केट खराब आ रहा है तो 10-11 महीने के बाद रिकवर कर जा रहा है। इवन इन कोविड जैसी क्राइसिस में भी, व्हेन देयर वाज नोज डाइव, देन आल्सो जस्ट 2-3 महीने का ही गैप था, बस ज्यादा नहीं था। सो हियर वी कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे मतलब क्लियर लीडर्स दिख रहा है, एकदम हिस्ट्री इज क्लियरली टेलिंग कि मतलब काफी अच्छा मार्केट परफॉर्म किया है, स्पेशली द यूएस मार्केट। ठीक है, नाउ यूएस मार्केट के आउटलुक 2021 के हमारे मेजर आउटलुक्स क्या हैं। फर्स्ट इज ऑब्वियसली फेडरल रिजर्व की जो फेड पॉलिसीज जो आ रही थी, कि फेडरल रिजर्व की जो पॉलिसीज है मेनली, कि हाउ दे आर चेंजिंग इंटरेस्ट रेट्स एंड ऑल दीज थिंग्स, वो लाइक वो सारी चीजों से, मतलब जो भी दे हैव गिवन कमेंट्रीज, दैट इज अ वेरी पॉजिटिव कमेंट्री एक्चुअली। एंड फिस्कल स्टिमुलस भी मिला है कोविड के समय पे, एंड अगेन अनदर स्टिमुलस इज इन द लाइन, तो दैट इज अनदर वेरी पॉजिटिव मूव। इनोवेशंस एंड ऑल चीजें हो रही हैं जिससे कि things can come into like basically so that things can become readily available and अभी जैसे ड्यू टू पैंडेमिक काफी डिजिटाइजेशन एंड ऑल ये सब चीजों पे फोकस है। सो दैट इज अनदर गुड थिंग फॉर द मार्केट कि खाली नहीं बैठने वाले हैं लोग, रहेगा काम मिलेगा। सो ऑब्वियसली व्हेन देयर इज वर्क देयर विल बी बिजनेस। तो व्हेन बिजनेस इज देयर तो थ्राइविंग होगा, तो ऑब्वियसली इकोनॉमी विल थ्राइव। and professional investors are actually very underweight right now, as of now। अगर देखा जाए तो जैसे इंडियन मार्केट की तरह ग्लोबल मार्केट्स में भी देखा जाए तो पैसे निकाल के ही कैश में ही बैठे हुए हैं सारे लोग, कैश में। सो इट इज सेट टू, मार्केट्स आर सेट टू रैली। बस यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या चीज आती हैं, ऑब्वियसली थोड़ा सा टैक्सेस। फर्स्ट थिंग इज, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अनलाइक इंडियन मार्केट्स, यूएस मार्केट में देयर इज नो सिस्टम ऑफ, मतलब टैक्सेस थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। सो बेसिकली लाइक इंडिया में बेसिकली ये सारी चीजें एलआरएस स्कीम के अंडर आएंगी। सो इन अंडर एलआरएस स्कीम व्हाट हैपेंस इज कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स आपके टैक्सेशन जो होते हैं वो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स की तरह टैक्स होते हैं, मतलब कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का टाइम होता है 3 इयर्स, नॉट 1 ईयर। सो एक ये टैक्सेशन वाइज मतलब एक ये होता है कि इवन इफ यू आर बाइंग इन्वेस्टिंग इन डायरेक्ट स्टॉक्स, तब भी टैक्स वाइज आपको 3 साल वेट करना होगा एलटीसीजी पाने के लिए।
अदरवाइज 15% का टैक्स है, वरना 10% होता है। तो यस, अगर स्टॉक्स ओनली फॉर स्टॉक अगर देखा जाए तो यस, नो डाउट इट हायर टैक्सेस हैं फॉर 3 इयर्स का, अगर टाइम फ्रेम है लेस देन 3 इयर्स का, तो यस। सो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इज ऑब्वियसली, मतलब ऑब्वियसली वाइल ट्रांसफरिंग फंड्स भी थोड़ा बहुत आप 500,000 दे रहे होगे ट्रांसफर करते टाइम एंड निकालते टाइम। सो ऑब्वियसली पीपल यूजुअली थिंक कि अच्छा 2 4 5 लाख एक साथ में ही, 1 1.5 लाख मिनिमम, 1 1.5 लाख रुपए दे ट्रांसफर। एक्चुअली ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स मतलब मिनिमम लाइक 1000 USD से नीचे तो आप स्टार्ट भी नहीं कर सकते। सेकंड इज रिस्क, मतलब यही चीज है कि मेजर रिस्क इज कि ये जो नॉर्मलसी, जैसे कई रेस्ट्रिक्शंस भी आए हैं फॉर इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, देयर आर मल्टीपल रेस्ट्रिक्शंस। एंड जैसा स्मूथ फ्लो अभी इंडिया में है कि यार बाई करना है तुरंत सेल हो जा रहा है, ऐसी चीजें उतना स्लोली यहाँ पे नहीं है। पैसे ट्रांसफर होने में ही 2 से 3 दिन लगते हैं। सो ये सारी नॉर्मेलिटी, ये सारी चीजें आने में टाइम लगेगा। थर्ड इज मेनली जियो पॉलिटिकल रिस्क। कई रिस्क हैं कि यहाँ डोनाल्ड ट्रम्प ने, सॉरी जो बाइडेन ने ऐसे कर दिया, या डिफरेंट मल्टीपल रिस्क इन्वॉल्व विद ट्रांसफरिंग योर मनी अब्रॉड, ऑब्वियसली वो चीज होता है। एंड वैल्यूएशन वाइज देयर आर मेनी कंपनीज, देयर आर, सी somebody of just before this session, there was one person who was asking me about how is the NYSE FANG invest mutual fund and how was that. So obviously like we, if you all recall, तो हमने like last month when that fund was launched, तो हमने काफी डिटेल में उस पर डिस्कशन किया था। एंड टू एवरीवन हु वांटेड टू इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट्स, ज्यादा अमाउंट, टू एवरीवन आई वांट कि आप थोड़ा बहुत करो, बाकी अमाउंट विल इन्वेस्ट इन, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट ग्लोबली देन बेटर इन्वेस्ट इन माय पोर्टफोलियो, आई एम कमिंग अप विद दैट सून। सो बिकॉज द थिंग इज दैट फंड हैज बेसिकली, उन्होंने सेलेक्ट किया है जो भी बेसिकली, फर्स्ट लेट मी टेल यू वन थिंग, फैंग नाम का जो इंडेक्स उन्होंने बना दिया, देयर इज एक्चुअली में, मतलब फैंग नाम का इंडेक्स से बड़ा इंडेक्स जो है, दैट इज फैम्ब इंडेक्स, FAMM। बेसिकली उस इंडेक्स में एन जो उन्होंने ऐड किया है जबरदस्ती नेटफ्लिक्स का, उस एन से ज्यादा बड़ी कंपनी बेसिकली इस अलीबाबा और बाइडू जैसी कंपनीज, दोस कंपनीज आर बिगर, बट लाइक वो कंपनी हम लोग उसमें वो ले नहीं रहे, मेनली लाइक we haven't incorporated वहाँ की कई companies like Berkshire Hathaway and all these types of companies उसमें है ही नहीं। So basically what happens here is कि like we don't have the liberty in that index कि yes 3 4 stocks उसमें अच्छे हैं, 4 5 stocks, all are good stocks no doubt, but when you are forming a portfolio, आपको like you cannot miss out on other stocks, Mastercard जैसी companies, big companies and all, ये सब companies है ही नहीं, which is way bigger company than Netflix. So the and payments and all these will be, ये सारा future रहेगा। And the see the best part of global investments with us is कि आपको start करना है as soon as Chinese and all these investment starts, मतलब उसके portfolio जैसे ही मैं बना लूंगा, what will happen, you will get an option to switch out these investments या spread out these investments across the globe. So everything like all those things are possible. So what happens is कि जो मैं फैंग के बारे में बात कर रहा था, तो फैंग के कई स्टॉक्स आर वेरी ओवर वैल्यूड। आप you cannot pick 10% of portfolio allocation, you cannot give in Google, Facebook and all same ratio से, they will grow no doubt, but there are many other companies which have huge potential to grow much more at much more faster pace. So like that is the main thing. So obviously you can invest in globally with mutual funds and all, but the thing is कि again अगर आप stocks में, equities में, if you are subscribing to any of my portfolio plans, then better is कि global investments में भी go with some portfolio, because here every stock or everything is selected after deep analysis, मतलब काफी वैसे ही तरीके से every, and you will see the difference, मतलब you will see कि कितना drastic difference आ रहा है, मतलब like what I'll show you in this in these slides only. तो इनोवेशन हब में मैं बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि सी ग्लोबली यू विल फाइंड कि ये सारी कंपनीज जो हैं, एप्पल, टेस्ला, स्पॉटिफाई, ये सारी जो भी कंपनीज हैं, यू विल फाइंड कि आफ्टर सम टाइम्स these companies are basically able to identify the themes of tomorrow, and these companies actually shape the life. फेसबुक बताता है अब इस समय कि आपको कैसे रहना है, many things, लाइफस्टाइल चेंज हो गई फेसबुक गूगल के आने की वजह से, व्हाट्सएप कर दो, मेनी इंडस्ट्रीज आर एक्चुअली, वो लोग यूज करते थे टूल्स डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए, अब यू विल फाइंड मेनी एजेंट्स एंड ऑल, वो लोग व्हाट्सएप पे ही, ग्रुप पे ही मैसेज कर दो, थिंग्स आर गेटिंग हैपनिंग, मतलब वेरी क्विकली चीजें हो रही हैं। सो दीज कंपनीज आर शेपिंग द लाइफ। तो मतलब ऑब्वियसली यू कैन नॉट मिस आउट इन्वेस्टिंग इन दीज कंपनीज, एंड इफ यू गो विथ म्यूचुअल फंड्स तो वहां पे यू डोंट हैव द लिबर्टी, मतलब आपके here you can give advice कि अरे आप ऐसा भी करो, इसमें भी you can consider something, so all these things are there.
अब now let us look at कि what are we offering. So we are basically offering two basic major, like हमारे जो major focus होंगे वो technology and innovation पे ही like mainly हम लोग focus करके रखे हैं. And what we have done is basically हम लोग investment portfolios लेके आए हैं, एक basket of portfolio stocks लेके आए हैं where you can basically invest and like see basically तीन types के major portfolios हैं. First portfolio is कि first is हमारा like let me show you the portfolio. First portfolio is the disruptive innovation portfolio. So यहाँ पे क्या है कि हम लोग like we are picking those technologies जो एकदम disruptive innovation लेके आ रहे हैं, like blockchain. एक ऐसी लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं. If you are wanting to invest in crypto या ये सब चीजों के लिए, and if you are convinced with the idea, many people like give me like those who have done bit of research and they come up with to me and they tell me कि ये क्रिप्टो अच्छा है, इसका लॉजिक काफी अच्छा है. Then I tell them this thing कि यार सेम लॉजिक्स के ऊपर जो कंपनी काम कर रही है, why don't invest in that company? That will definitely grow up with much more faster rate than its product. Definitely हो सकता है अभी वो बीट हो रहा हो, नहीं हो रहा हो, but obviously in the long run invest in blockchain technology, invest in robotics, adaptive robotics. मतलब एक्चुअली में जैसे ह्यूमंस यूज कर सके, ये नहीं कि बस लाइक एक्सपेरिमेंट करने के लिए या फिर शो ऑफ करने के लिए बनाया हो. एक्चुअल रोबोट जो सच में चार्जिंग पे मोबाइल लगा सके या कुछ भी, वट एवर बी और चीजें. सो ये सारी चीजें एंड जीन एडिटिंग एंड ऑल दीज थिंग्स आर की आजकल डिफरेंट कंट्रीज में यू मस्ट बी सीइंग की मतलब ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है कि पीपल आर चेंजिंग their sex, people are changing their breed and all, multiple चीजें हो रही हैं. खुद humans में नहीं, even मतलब like different products में hybrid varieties of tomatoes, potatoes, organics, सारी चीजें आ रही हैं. These will change the future. Cloud computing, IoT, autonomous mobility, मतलब like MG Hector, self parking, these features, ये सारे features you won't find these things in India. 3D printing, neural networks, you won't find इस level की चीजें in India. So definitely मतलब जाना ही जाना है. अगर आप एक कंपनी कर रही है and if you are not capturing and if you are waiting कि जब आएगा तब करना है, then like you are too late. मैं सोलर ऐसी सिंस लास्ट 2017 सोलर ईटीएफ्स को इंडिया में सोलर एनर्जी को मंजूरी लाइक सेबी हैज गिवन कि हाँ मतलब यू कैन लॉन्च ईटीएफ्स एंड ऑल ये सब चीजें. बट द थिंग इज ग्रीन एनर्जी एंड ऑल पे इंडिया में कोई कंपनी ऐसी ऐसा है नहीं जो बहुत ज्यादा काम कर रही है अपार्ट फ्रॉम फ्यू गिवन नेम्स, सेलेक्टेड नेम्स, बाकी लिस्टेड ही नहीं है. But like I am investing in a solar ETF since last 2000 since 2017 का जो year था. Even there are few mutual funds अरे sorry ETFs जो which invest in cannabis and all, marijuana, ganja जिसे कहते हैं, those वो सब चीजों को legalize करने के बाद that thing has grown and you won't find. मैंने 700% के क्या कर देखी है in cannabis का business का जो मेरा investment portfolio है, where I have just invested with this idea कि यार marijuana के legalization से these things will explode open up. Marijuana के legalization and this thing mainly blockchain and all, इसके ऊपर I have seen more than 700% का क्या कर, all these companies have given me those returns. तो वो सारी चीजों पे like you cannot invest. Solar energy पे invest करना है, that ETF is growing at a CAGR of 128% last 3 साल, sorry, last 3 साल से it is growing at that rate. So you cannot wait for those things to start in India. Water पे trading start हो चुकी है future में, अरे सॉरी in different countries waters के futures हैं, water पे investments आ चुके हैं, mutual funds आ चुके हैं. People in India don't even know about these things. So ये सब चीजों को explore करना है तो you have to go global. So हमारा ये जो disruptive innovation portfolio है, basically इसकी 5 साल की कैगर रिटर्न ये है 58.4%. दिस इज द कैगर रिटर्न्स ऑफ लास्ट 5 years, इस पूरे पोर्टफोलियो की कैगर रिटर्न. एंड वाइल नास्डैक, लाइक नास्डैक का अगर आप देख रहे होगे तो नास्डैक ने जस्ट 26% के रिटर्न्स दिए ओवरऑल लास्ट 5 years में. नास्डैक इज द टेक्नोलॉजी कंपोजिट इंडेक्स. नास्डैक इज द बेसिकली यूएस का नास्डैक कंपोजिट इंडेक्स इज बेसिकली टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टॉक्स इसमें रहते हैं. सो इस इंडेक्स को भी हमने काफी अच्छे से बीट किया, लाइक कहीं आसपास भी नहीं है ये इंडेक्स, कहीं पे भी नहीं आ रहा है. इन स्पाइट ऑफ दिस इंडेक्स बीइंग ओवरवेट बाय कंपनीज लाइक गूगल, अमेजोन, जो अभी पास्ट में बहुत ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं. दिस पोर्टफोलियो हैज ओवरवेट ऑफ मतलब ये नैस्डैक में काफी ओवरवेटिंग है, उसके बाद भी रिटर्न्स काफी कम है. एंड आवर पोर्टफोलियो हैज लाइक वेरी गुड स्टॉक्स. तो रीजन टू इन्वेस्ट इज वी विल बी exposing our portfolio to innovations
एंड ग्रोथ का पोटेंशियल, सी मुझे नहीं लगता कि ये टेक्नोलॉजी के नाम लेने के बाद भी ग्रोथ पोटेंशियल बताने की जरूरत है किसी को, या फिर डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत, मतलब ये पॉइंट्स बताने की जरूरत ही नहीं है। इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स, जीन एडिटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, आईओटी, ऐसी कंपनीज में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो जो ऐसी टेक्नोलॉजी में काम करती हैं, सिंपल है, मतलब यू आर, देयर इज ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल एंड डाइवर्सिफिकेशन, मतलब। तो ये एक हमारा पोर्टफोलियो है। सेकंड पोर्टफोलियो इज आवर, जस्ट अ सेकंड, या सो सेकंड पोर्टफोलियो इज आवर सिलिकॉन वैली पोर्टफोलियो। सो सिलिकॉन वैली पोर्टफोलियो में मेजरली लाइक लाइक सिलिकॉन वैली टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज ही हैं मेनली, बहुत ज़्यादा मेजर टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज हैं, लाइक अमेजोन, गूगल, फेसबुक, एप्पल, ऐसी कंपनीज विच बेसिकली मेनली एज द नेम सजेस्ट, ये सारी टेक्नोलॉजी रिलेटेड ही मेनली ये पोर्टफोलियो है। एंड दिस पोर्टफोलियो हैज गिवन अ कैगर रिटर्न ऑफ 31.5% इन द लास्ट 5 years। सो मेनली टेक जायंट्स बेस्ड पोर्टफोलियो है। सो इंस्टेड ऑफ, मतलब दिस इज द मेन रीजन वाई मैंने एनवाईएसए फैंग में काफी कम अमाउंट करवाया था। दिस इज द मेन रीजन वाई, बिकॉज इफ यू हैव लमसम अमाउंट, instead of that fang, go with this Silicon Valley portfolio. It will give you huge returns मतलब मिलेगा। Now third is mega trends portfolio, which is like basically here what we will capture is, we will basically capture mega trends of the portfolio, and this portfolio is actually constructed on the idea of our global investment। केथी वुड का आप लोगों ने नाम सुना होगा कि she picks some stocks, काफी famous stock picker and all है, and she basically केथी वुड्स our global investment is a basically बहुत बड़ी institutional company है जिसका mutual fund and all ये सभी चीजें हैं। So what happens is कि उसकी so उसी concept पे हमने start किया था thought process इसका, but we have evolved the portfolio, started with that concept, and yes, Kethi Woods, our global investment ETF, is a very heavyweight part of this portfolio, but yes, और भी changes हैं। We have basically, it is like कि 55-60% कॉपी किया है हमने वही सेम पोर्टफोलियो, एंड बाकी का 40-45% चीजें हमने अपना लाइक आवर थॉट प्रोसेस वी हैव अप्लाइड। तो बेसिकली इसमें क्या है कि मेनली चार चीजों पे हमने फोकस किया है कि टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू, डेमोग्राफिक्स, रैपिड अर्बनाइजेशन एंड क्लाइमेट चेंज एंड ऑल, ये सब चीजों के बेसिस पे जो भी इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, लाइक एनर्जी वाइज जो मैंने अभी क्लीन एनर्जी और ये सोलर ये सब चीजें बताई, ये सारे पार्ट्स हैं, सोलर कंपनी, ये सारी चीजें उस पोर्टफोलियो के पार्ट हैं। इफ यू सी कि जो बाइडेन का भी प्लान है एक्चुअली क्लीन एनर्जी प्रमोट करने का, इवन इन इंडिया आवर गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग क्लीन एनर्जी एंड दिस विल बी अ नीड इन फ्यूचर। तो वैसी कंपनीज, ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी, सो दिस पोर्टफोलियो बेसिकली इट इज काइंड ऑफ थोड़ा सा मिक्स ऑफ डिसरप्टिव इन्वेस्टमेंट और सिलिकॉन वैली का मिक्स है, बट यस फ्यू मोर आइडियोलॉजीज भी इसमें अपॉइंटेड है कि यस, जैसे स्विगी, लेट सपोज अगर स्विगी की बात करते हैं, इंडिया में सपोज स्विगी है, सेम तरीके, सॉरी इंडिया में सपोज ओला है, सेम तरीके से वहां पे उबर है या लिफ्ट है। इंडिया में जैसे स्विगी है, देर आर चेन्स वहां पे, डोमिनोज एंड ऑल, वो सबके स्टॉक्स लिस्टेड हैं। सो दीज थिंग्स, जैसे इंडिया में स्विगी अभी एज ऑफ नाउ 1-2% ऑफ पॉपुलेशन के पास हार्डली गया है, 45-50 सिटीज में मैक्सिमम, एंड बाकी पूरी इंडिया अभी भी स्विगी से ऑर्डर नहीं कर पाती है। सो इमेजिन कि अगर स्विगी में हम इन्वेस्ट कर रहे होते, लेट्स जस्ट कॉन्सेप्ट में जाइए, विल नॉट लुक इनटू द फंडामेंटल्स, ये नहीं कि जोमेटो में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, नहीं, दोस थिंग्स आर डिफरेंट, आपको कई चीजें देखनी होती है। जस्ट इमेजिन द आइडिया कि इस आइडिया में अगर कोई कंपनी प्रॉफिटेबल हो रही है तो देन वी कैन इन्वेस्ट हियर इन दिस आइडिया। सो व्हाई, ये है बेसिकली ओवरऑल ये पोर्टफोलियो। दिस पोर्टफोलियो हैज गिवन अ कैगर ऑफ 21.1% इन द लास्ट 5 years, while इसका जो बेंचमार्क MSCI ACWI, बेसिकली MSCI इज मॉर्गन स्टैनली कंपोजिट इंडेक्स का पोर्टफोलियो है, एंड ASWI इज बेसिकली आर्क्स ग्लोबल इन्वेस्टमेंट केथी वुड इंडेक्स। आर्क्स केथी वुड इंडेक्स बेसिकली इसको कहा जाता है। ये एक इंडेक्स है बेसिकली, इट इज अ वेरी फेमस इंडेक्स जो यूएस मार्केट में एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग लाइक दिस इज द पोर्टफोलियो। सो अब मैं एक चीज और डिफरेंस बताता हूँ, ये तीन पोर्टफोलियोज में दिख रहा होगा दिस पोर्टफोलियो इज द बेस्ट पोर्टफोलियो रिटर्न वाइज, ये पिछले 5 साल के रिटर्न्स हैं। अगले 5 साल क्या होगा, फॉर दैट गेट इन टच विथ मी कि हाँ किस टाइप का है। आई हैव ब्रीफली एक्सप्लेन कि मतलब ओवरऑल क्या रहेगा इन पोर्टफोलियोज में, बेसिकली ऐसे ओवरऑल इस तरीके से चीजें हैं। सो लाइक ये तीन टाइप्स के पोर्टफोलियोज हैं। नाउ लेट अस लुक इनटू द कॉस्ट रिलेटेड थिंग्स। एक पॉइंट है जो मैं बता देता हूँ, कॉस्ट रिलेटेड थिंग मैं बताता हूँ। सी, इफ यू आर इन्वेस्टिंग इनटू दिस, तो मैं आपको बताता हूँ कॉस्ट्स क्या क्या आएंगे। फर्स्ट कॉस्ट वुड बी ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड अकाउंट।
तो उसमें यस जो भी बैंक HDFC ICICI बेसिकली इनका 600-700 रुपीज पर ट्रांसफर का चार्जेस है। तो ऑब्वियसली यू शुड नॉट ट्रांसफर 1000 रुपए डाल के चेक नहीं करना है। सिंपल जब भी आपको डिसाइड कर लेना है सिंपली यू हैव टू एक बार में आपको ट्रांसफर करना है, ट्राई टू ट्रांसफर ज्यादा एक बार में। इट इज फॉर नॉट फॉर ट्रेडिंग, ट्रेडिंग वाली चीज भी वी विल कम, मतलब कुछ दिनों में आई विल ब्रिंग ट्रेडिंग वाली भी चीज। एज ऑफ नाउ इट इज इन्वेस्टमेंट। तो इसमें लाइक यू हैव टू इन्वेस्ट। सेकंड थिंग इज मिनिमम $1000 का इन्वेस्टमेंट है, एंड आफ्टर दैट मतलब लाइक $1250, $1500 मतलब $250 के बैचेस में इंक्रीज। ये नहीं कि मुझे 11,000 1167 डॉलर इन्वेस्ट करना है। दैट वोंट बी पॉसिबल बिकॉज पोर्टफोलियो में सारे पैसे डालने हैं, तो पोर्टफोलियो में एक फिक्स मतलब रेशियो में आपको डालने होते हैं। सो ये काफी मतलब लाइक मिनिमम $1000 का इन्वेस्टमेंट एंड देन $250 के लाइक परसेंटेज बैचेस में यू कैन इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट। आप चाहो तो $1250 ट्रांसफर करो या 1500, जो भी मिनिमम इतना यू हैव टू ट्रांसफर। ट्रांसफर करते टाइम 600 या समथिंग लगता है। थर्ड इज one time Demat account opening fees of $5, which is basically equal to 350 रुपए के आसपास आ रहा है। वन टाइम ओपनिंग फी चार्ज होती है, तो आप मेक श्योर यू ट्रांसफर $5 एक्स्ट्रा जब भी आप करते हो। वो सारी चीजें बताई जाएंगी, बट कॉस्ट वाइज दिस इज सेकंड कॉस्ट। फर्स्ट इज ट्रांसफर करते टाइम 600-700 रुपए लगते हैं। सेकंड इज वन टाइम ये डीमैट अकाउंट ओपनिंग चार्ज विद द यूएस ब्रोकर। थर्ड इज which is the portfolio management fees that will be flat, मतलब non negotiable, that will be flat। दो हमारे ग्लोब ये डिसरप्टिव इन्वेस्ट मेगा ट्रेंड्स वाले पोर्टफोलियो के लिए 1.6% एंड सिलिकॉन वैली एंड डिसरप्टिव इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए 2.6% of the amount, मतलब that is the portfolio advisory fees। apart from that you don't have to pay any brokerage charges, any transaction charges, कुछ भी नहीं। कितने बार भी बाई सेल हो उसमें मल्टीपल टाइम जो भी चीज हो कोई चार्जेस नहीं देने। दोज थिंग्स विल बी टेकन केयर ऑफ बेसिकली लाइक वो सारी चीजें इन दैट 2.6% या 1.6% जो है उसमें ही टेकन केयर की जाएगी। एंड नाउ हु शुड इन्वेस्ट इन दिस पोर्टफोलियो, वो चीज मैं बता देता हूँ। सी अगर आप मेरे ऑलरेडी लाइक इफ यू हैव मोर देन 4-5 लाख रुपीज एंड अगर आप मेरे मोमेंटम पोर्टफोलियो या वैल्यू इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो के सब्सक्राइबर हो, नॉट वैल्यू इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो विथ एटलीस्ट 4 to 5 लाख रुपीज, अगर आप उसमें उतना इन्वेस्ट मिनिमम कर रहे हो, ओनली देन यू शुड कम हियर एंड लाइक इन्वेस्ट विथ मी। बिकॉज द थिंग इज कि अगर आपके पास सिर्फ 2 लाख रुपए हैं या सिर्फ 4 लाख रुपए हैं, तो दिस थिंग इज नॉट फॉर यू। आप बेटर पहले इंडिया में इन्वेस्ट करो, पैसे जब ग्रो हो जाए तब डाइवर्सिफिकेशन का सोचना। if you have good money then you can look for diversification, and if you have invested more than 8 to 10 lakh rupees or have plans to invest 8 to 10 lakh rupees into my portfolio in the next 1 year, then like blindly go with this global investment। invest at least like 1.5 to 2 lakh rupees here because कुछ portfolios में yes right now we'll earn, but ये जो China and Korean markets का I am bringing, सी मतलब मैं बता रहा हूँ चाइना आज से 5 साल बाद या 8 साल बाद चाइना विल बी लाइक गेम चेंजर टाइप, बहुत बड़ी कंट्री हो गई रहेगी। कई चीजें हैं जो इसमें लाइक वी विल बी यूजिंग उनकी वहां से जनरेटेड एप्स, दिस इज फॉर श्योर। मतलब यू कैनॉट मिस चाइनीज मार्केट्स या कोरियन मार्केट्स को, आप मिस नहीं कर सकते हो। इट इज लाइक मतलब लाइक विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वी विल ब्रिंग दोज पोर्टफोलियोज एज वेल, एंड यहाँ से ही लाइक ऑल द डाइवर्सिफिकेशन कैन बी डन। But so the thing is ki like you should definitely, if you are investing with at least 8 to 10 lakh rupees into my portfolios, then you should matlab like blindly you should come here। I even if you haven't like if you don't have the plans, then I will like share you the plans कैसे कैसे करना है। एंड थोड़ा जस्ट भी मैं ब्रीफ में बता भी सकता हूँ, इफ यू कॉन्टैक्ट विथ मी इन डिटेल तो मैं जस्ट में भी बता सकता हूँ कि कौन से पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वो चेंज होते रहते हैं। देयर आर अ फ्यू फैक्ट शीट्स व्हिच आई सेंड टू यू, सेंड टू फ्यू पीपल, मेनी ऑफ यू फ्यू सम टाइम बैक, बट वो उसमें भी कई चेंजेस आ गए हैं। लाइक मेनी स्टॉक्स वी हैव बुक प्रॉफिट, काफी स्टॉक्स चेंज हो गए हैं। सो लाइक दैट is pretty much from global investments। if you have any doubts then ask the question। Okay, so what is the minimum lump sum amount? So minimum lump sum amount for this investment, as I said, is $1,000 per portfolio, $1,000 minimum। And if you want to increase the amount, then $250 minimum increase karna hai, and 250 ke batches mein। So that is the way, and like those things। And secondly, like obviously, matlab you should have all the basically this is the major requirement monetary wise।
एनी अदर डाउट्स अगर किसी को है परफॉर्मेंस या जो भी चीजों के वाइज, तो यू कैन लाइक सिंपली पिंग ऑन द चैट. एनी अदर डाउट्स टू एनीवन? If anybody has doubts, then I can, otherwise we can wrap up the session. या फिर कोई भी और doubt in general, मतलब like if you are investing या trading with me, apart from मतलब how to do अब account opening कैसे करना, order कैसे लगाना, ये सब चीजें नहीं. Apart from that, any technical doubt कि कैसे trading में कैसे करना है in on any of my plans, या कुछ भी चीजें trading and all का कैसे करना है, या anything how to basically position sizing and all risk management, ये सब चीजों के बारे में I'll discuss later in upcoming webinars. But abhi ke hisab se, like if you have any doubts, then we can discuss here. Otherwise, that would be pretty much all. We can end the webinar.